Hello everyone, and welcome to in this webinar for the wedding photographer. As of now, lockdown, as of now, the lockdown is slowly lifted up, and you all know that there are lots of challenges जो हमारी wedding photography industry पे आ रही हैं. So regarding for this, we are organizing a webinar, and I would like to thank all the attendees and the industry expert panelists जो इस वेबिनार में हमारे साथ ज्वाइन किए हैं. वेलकम ऑल. थैंक यू. तो माय नेम इज सौरभ वास्ता, ब्रांच मैनेजर फ्रॉम कैनरा. तो अभी मैं चाहूँगा हमारे सभी पैनलिस्ट को वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द दीपक शर्मा फ्रॉम जम्मू. दीपक जी प्लीज. हाय सौरभ जी एंड हेलो एवरीवन. आई एम दीपक. मैं जम्मू बेस्ड हूँ. I started as a corporate person. I worked in corporate for more than 12 years, and but photography was always a passion for me. As I recall, I bought my first camera in 1999 when I passed out my 10+2. So it was always a passion for me. Definitely I worked in corporate for 12 years, and then I quit my job. I started my own thing, and I went abroad for and then I came back to my native place Jammu, and now I am working here. DS is my company. I work online. My website is dsdigitalgallery.com, and I'm trying to just make something out for me which I could really relish and I really love. So that is all about me. I hope I could contribute something to this conversation, this discussion, and be useful to you guys. Thank you. Oh, thanks, Deepak ji. So I would like to request the young energetic Kapil from Shimla base. So please introduce yourself. Yeah, namaskar. Good afternoon to everyone. I'm Kapil Dogra, and मैं Studio Nirvana को represent करता हूँ. I'm the CEO of Studio Nirvana and Kapil Dogra Photography in Shimla. So it's a great journey so far for me. Like I started my photography business in 2012, full-fledged professional level. Earlier, when I was in school, so we were in +2 standard. So at the farewell party, I took one Yashica camera, a small one. So that was the first time when I realized that this is something I would love to do it down the line. So then again, I worked with some good MNCs like Infosys, Dell. So everything, the experience came handy because aaj ka scenario hai, it's very techy. We have to be very camera friendly, and we should know everything technical about it. So so far I'm in industry more than 8 or 10 years now. So it's a great experience. Met many new photographers, learned from elders, and with the help of younger photographers, we pulled it through. And today I'm really happy that through this platform I'm able to reach out to everyone out there, aspiring photographers who are at a higher level, who are at a lower level. So this is a field where nobody is perfect, as per me. You could learn at any level, and that's all about it. So rest we'll discuss in the panel, like how things goes forward. Thanks Kapil. So मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरप्रीत जी मनीष से. Please introduce yourself. Hello everyone. Hope आप सब ठीक हो. मैं मनी. तो मैं जलंधर बेस्ड हूँ. तो मैं फोटोग्राफी हमारा मतलब फैमिली बिजनेस है. मेरे फादर ने 1988 में स्टार्ट किया. तो आई थिंक मैंने ज्वाइन किया 2008 में. तो मतलब कैमरास तो हम बचपन से ही यूज करते आ रहे थे. मतलब घर पे पड़े रहते चलाना. तो बस वही शौक बन गया. तो उसको ही आगे चलाते हुए तो अभी मतलब फोटोग्राफी करते काफी टाइम हो गया. तो आज आप सबसे कुछ ना कुछ बात करके कुछ सीखते हैं और सबको कुछ बताते हैं. Yeah, great. Thank you. There is another panelist from Uttarakhand, Mr. Bhumesh Bharti. Bhumesh ji, please आप इंट्रोड्यूस कीजिए.
उमेश जी, माइक की आपका टेक्निकली म्यूट है और आवाज कम आ रहा है, तो आप प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो, नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? पहले आपको यह बताएं सर जरा। जी जी उमेश जी बिल्कुल, जी आवाज आ प्लीज रही है आपकी। कैरी ऑन जी जी, कीजिए। ओके ओके ओके। सर, मैं देहरादून से भूमेश भारती बोल रहा हूँ। मैं बहुत अलग अलग कई सारे फिल्म पे फोटोग्राफी करता हूँ। मेरे वेडिंग के अलावा इवेंट्स और थोड़ा सा जर्नलिज्म बहुत पहले था। अभी कैनबरा से मेरे जुड़े हुए 2009 से मैं ऐसे जुड़ा हूँ और यहाँ पढ़ाता भी हूँ फोटोग्राफी। मेरा एक अब उमेश उमेश जी, आपका ना नेटवर्क के कारण आवाज कम आ रहा है, प्लीज आप थोड़ा रिपीट कीजिए। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा भूमेश जी का नेटवर्क का कंसर्न है, जिस वजह से वो इंट्रोड्यूस नहीं जी कर सर, पा रहे। जी 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 मैं भूमेश भारती हूँ सर, देहरादून का। जी, तो जैसे हम सभी आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट पैनलिस्ट हो और एक्सपर्ट हो, जैसे हम सभी लोग जान रहे हैं, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है और इसी के साथ हमारी फोटोग्राफी इंडस्ट्री पे भी कई तरह की नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसे कि कैश फ्लो मैनेजमेंट, फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग और वेडिंग की क्वेरीज कैसे आ रही है, वेडिंग के बजट कम हो रहे हैं, वेडिंग पोस्टपोन हो रही है या वेडिंग कंटिन्यू हो रही है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा दीपक जी। आप बताएं भी कोविड का वो फोटोग्राफी इंडस्ट्री पे जो अभी करंट इफेक्ट आ रहा है, तो उसको हमें कैसे सिक्योर करना चाहिए, हमें फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो आप प्लीज इसके बारे में अपने सजेशन और व्यूज बताएं प्लीज। सौरभ जी देखिए, डेफिनेटली हम सब, मेरे भाई यहाँ पे जो हम प्रेजेंट हैं, हम सब एग्री करेंगे कि इम्पैक्ट तो है। हम ये नहीं बोल सकते, वी कांट डिनाई इट कि हमें इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट सबको है और इक्वली है। और अब ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि हमें करना क्या है। बिकॉज एक एक दवा से आप कर्ज का इलाज नहीं कर सकते। हर हर मार्केट के लिए, हर पर्सन के बिजनेस सेटअप के लिए देयर मस्ट बी सम डिफरेंट स्ट्रेटजीज विच नीड टू बी फॉलोड। बट डेफिनेटली एक आउटर लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं या डिस्कस प्लान आउट कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें इवॉल्व करना है। इस सिचुएशन के साथ हमें इवॉल्व करना है। आप किसी प्रॉब्लम को रेजिस्ट करके या उससे भाग के या उससे छुप के उसको फेस नहीं कर सकते या उससे जीत नहीं सकते। तो हमें इवॉल्व करना है। अभी तक देखिए, मुझे कई बार मेरी मिस्टर मुनीश से भी डिस्कशन हो रही थी इस बारे में। तो आई टोल्ड हिम ऑल्सो कि आई डोंट कॉल माई सेल्फ ए वेडिंग फोटोग्राफर। मैं अपने आप को एक वेडिंग फोटोग्राफर नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि डेफिनेटली मैं वी डू ए लॉट ऑफ वेडिंग्स, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड आउट, जब मैंने स्टार्ट किया था, माई एम वॉज नॉट टू बिकम ए वेडिंग फोटोग्राफर। माई एम वॉज टू बी ए फोटोग्राफर। आई लव फोटोग्राफी। मैं मुझे फोटो खींचना अच्छा लगता था, तो मैं एक फोटोग्राफी लाइन में आना चाहता था। अब प्राइमरली जो ब्रेड एंड बटर है फोटोग्राफी का नॉर्दर्न इंडिया में, वो दैट इज डेफिनेटली वेडिंग फोटोग्राफी। तो वो हम करते हैं। बट अभी हमें सबसे बड़ा एवोल्यूशन जो अपने मुझे लगता है करना चाहिए, वो ये है, वी शुड स्टार्ट पिकिंग आउट और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूजिंग आउट डिफरेंट थिंग्स जो हम कर सकते हैं। शायद मुझे प्रोडक्ट फोटोग्राफी में शौक हो, लेकिन मैं वेडिंग्स में इतना बिजी रहता हूं कि मुझे नहीं मौका लगता वो करने का। सो मे बी दिस इज द राइट टाइम टू एक्सप्लोर दैट एवेन्यू ऑल्सो, है ना। या किसी को पोर्टफोलियोज करना अच्छा लगता है और वो काफी अच्छे पोर्ट्रेट्स करते भी हैं हम लोग वेडिंग्स में। तो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे, बिकॉज देखिए अभी ऑनलाइन प्रेजेंस तो सबको चाहिए। आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। हर कंपनी को ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के लिए शॉर्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट शॉर्ट्स चाहिए या पोर्टफोलियो शॉर्ट्स चाहिए। लोगों को लिंक्डइन प्रोफाइल्स के लिए अपने शॉर्ट्स चाहिए। सो आप इवॉल्व कर सकते हैं। आप इस चीज को, जिसको हम सेकेंडरी बिजनेस समझते थे, हम उसे
जिसे हम एक पैसिव इनकम समझते थे, उससे हम अपनी प्राइमरी उसमें ला सकते हैं डेफिनेटली। और आई वुड आल्सो एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट जो हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम जितनी जल्दी हो सके उतना राउंड ऑफ कर सकते हैं, सो दैट के थोड़ा कैश इनफ्लो हमारे पास आए, सस्टेनेबिलिटी रहे। बिना बिना खाली पेट तो हरी भजन नहीं होता ना। सो इसके अगर आपके जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं आप उन्हें क्लियर ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं एज सून एज यू कैन, आपके डेफिनेटली देयर विल बी सम कैश फ्लो इन योर बिजनेस। अभी देखिए क्या है, जो अच्छे बड़े सेटअप्स हैं उनको शायद कैश फ्लो का उतना इन्फ्लक्स का उतना दिक्कत नहीं आ रहा होगा, बिकॉज दे हैव डेफिनेटली मेड सम बैकअप्स आल्सो, है ना। लेकिन मैं ये सबके लिए जर्नली एक बात कह रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी बिगनर आल्सो, जिनके लिए शायद एक फ्रीलांसर के लिए जो कि फ्रीलांसिंग करता है, अगर आपके लिए अभी कैश फ्लो इज ए प्रॉब्लम, यू शुड स्टार्ट, देखें जो काम हमने ऑलरेडी किया उसे खत्म करें, और वी शुड ऑल्सो स्टार्ट फेचिंग न्यू वेज टू अर्न मनी ऑल्सो, बिकॉज जो आप काम खत्म करेंगे आपको कुछ कैश फ्लो होगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, राइट, है ना। तो उसके लिए हमें वी शुड एक्सप्लोर सम न्यू वेज टू अर्न मनी, जिससे हम वो कर सके। अब न्यू वेज से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें एक किराना स्टोर खोल लेना चाहिए। न्यू वेज से मेरा मतलब है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, जो आपके स्किल के अकॉर्डिंगली आप जो और एवेन्यूज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी जब मैं रिसेंटली हम बात कर रहे थे, जैसे अब कपिल जी से भी बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं आपसे शेयर कर रहा था, मैं येस्टरडे इनफैक्ट आई शॉट 2 पोर्टफोलियो शूट्स, है ना। सो यूजुअली हमें वेडिंग्स में हम कई बार निग्लेक्ट कर देते थे कि ठीक है यार अभी वेडिंग का सीजन है तो कौन पोर्टफोलियोज करेगा, है ना, और टाइम नहीं निकाल पाते थे। So I did 2 portfolio. In fact, there was 1 wedding and 1 engagement session and 2 portfolio shoots that I did yesterday, and 1 I have lined up for today evening. So ठीक है, थोड़ा एक डे टू डे लाइफ में ऐसा काम करके अगर आपको थोड़ा कैश इनफ्लो आ सकता है, व्हाट्स द हार्म इन इट। सो बॉटम लाइन जो मैं जिस पॉइंट स्टार्ट करना चाहता हूँ वो 2 ही पॉइंट है। पहला है टू हेल्प bring in the cash, and number 2 is to evolve with the situation. Let's do something which brings in more focus towards bringing in new jobs, नया काम आए, उसके लिए हम कर सकते हैं। So this is what I suppose should be the way ahead. तो कपिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो वेडिंग की क्वेरीज अभी आपके पास आ रही हैं, और जो वेडिंग हमारी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में होनी थी, करंट डेट में, वो क्या पोस्टपोन हो गई हैं या वो वेडिंग कम बजट में हो गई हैं? उसके बारे में आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताएं। Yeah, surely. First of all, I would definitely agree with जो दीपक ने कहा कि it's time to build up something, you know, अपने आप को थोड़ा सा और ग्रूम अप करने का टाइम आ चुका है। तो बट अगर मैं हैव जॉटेड डाउन डिफरेंट पर्सपेक्टिव हियर, अगर हम देखें जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि कैश फ्लो कैसा रहना चाहिए, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ कैसा कम्युनिकेशन रहना चाहिए, और जो फ्यूचर कैसा है एट दिस जो भी फोटोग्राफर्स जुड़े हैं यहाँ पे, आई थिंक मोस्ट पीपल आर कंसर्न कि यू नो हाउ दे आर गोइंग टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, उनका लाइफ कैसे चलेगा एट द मोमेंट। बिकॉज अगर मैं देखूं, मैं ये नहीं कहता कि आई एम अ वेरी बिग फोटोग्राफर एट द मोमेंट, आई एम ऑल्सो लाइक यू नो, अगर मुझे काम नहीं मिलता तो इट हैम्पर्स सम टाइम, कहीं ना कहीं मुझे हैम्पर कर रहा है ये। एंड ऑफ द डे अगर मैं फोटोग्राफर हूँ तो कपिल डोगरा फोटोग्राफी इज नॉट जस्ट मी, देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ पीपल, एन नंबर ऑफ हाई एंड प्रोफेशनल पीपल, इवन कुछ में से सीनियर्स हैं, दे आर वर्किंग विद मी। तो हम एट दिस मोमेंट वी वांट टू मेक श्योर दैट यू नो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे, और हमारे जो मोर लाइक अ फैमिली मेंबर्स है फोटोग्राफी टीम के, दे शुड आल्सो गेट वर्क। बट क्या हो चुका है एट द मोमेंट इज लाइक जो वेडिंग्स हो रही है, which I shot like you know 2 or 3 weddings recently in this COVID session, तो उसमें क्या रहा कि गैदरिंग was just like 15-20 people, और उसमें क्या था कि सेफ्टी was like very much the priority। तो क्लाइंट क्या कहते हैं कि that you don't have to come like 4 or 5 people out there, you know, one client was saying that you know even अगर आप individually भी खुद दोनों चीजें पुल कर सकते हो तो दैट वुड बी मच अप्रिशिएटेड। ऐसे भी सिनेरियोज रहे हैं, बिकॉज यू नो क्या होता है कि एट दिस मोमेंट क्लाइंट इज अफ्रेड, यू नो, जैसे हम भी एज अ फोटोग्राफर वी आर आल्सो अफ्रेड, लाइक यू नो इफ वी गो आउट देयर, so you know there are people coming from different places, so it could be a situation like any person could be a carrier आज के टाइम में। so वो जो एक कोविड का डर है
but somehow आजकल थोड़ा सा since अब lockdown खुल चुका है almost, like people have started going out, or or queries, there are like four or five calls which I just recently attended. But क्या हुआ है, luckily the best part is like कि कोई भी weddings जो cancel नहीं हुई है, they got postponed. So let's take things in a positive way. हमें ये नहीं लेना चाहिए कि काम छूट रहा है, but maybe we have to be strong at this position at the time. So हम ये जरूर कह सकते हैं कि we have to build up a team अभी, ठीक है. For example, if I'm doing fine, I'm getting a wedding, ठीक है. So जो हमारा जो cash flow है, it works from client then to our studio, फिर then to our photographers जो हमारे साथ काम करते हैं, videographers काम करते हैं, editors काम करते हैं, printing partners हो गए हमारे, the framing partners हो गए, जो people who help us in lighting and everything. So every individual is connected in this when it comes to the cash flow. Sometimes what's happening is अब अगर हम client के see end of the day customer is a king. I hope everyone agrees with this thing. हम अगर client को retain करना चाहते हैं, उनको अपने साथ हमेशा future के लिए रखना चाहते हैं, तो we cannot be blunt to them. हम ये नहीं कह सकते कि okay fine, we will just keep जो भी आपने advance दिया है, we'll just keep it because we need it, or we are not going to return it, or I think we need to be very much transparent उनको भी, because end of the day अगर हम भी clients होते हैं, तो we want to make sure कि अच्छा experience मिले photographer से. For example, आपने advance ले लिया 10%, 20% according to your जो भी आपकी terms and conditions रहती है. So we have to be very sure that client को हम transparent रखें that sir, your advance is safe with us, definitely, but we will make sure that जब भी आप in future, whenever you are comfortable, you decide, you will be the priority. You will be the priority that because आपने already हमें book कर चुके हो, so you will be the priority. हम आपको ही serve करेंगे. जो चलो client is one thing, then comes your team, because at this moment I don't think so. अगर आप full-fledged weddings पे you work 10 to 15 people, high-end weddings पे you work more than that. So I think अब सभी का it's more of a survival at this moment. अब सबको maintain करके रखना, it's up to you. Because अगर आप you are a brand, so I'm sure that people believe in you. अगर आप खुद individually जा रहे हो, और any senior photographer or whosoever who's expert in photography is going from आपके behalf पे जो जा रहा है shoot करने, so you will have to give work to everyone out there. अब ऐसा नहीं रखना है कि just I go and I earn, I go and I earn. So you will survive for the moment, but people who are working with you will leave you. Because आप उनके साथ नहीं रुके at this moment, because ये तभी कहा है दीपक ने कहा कि we have to work together at this time. So मेरा कहने का ये मतलब है कि when it comes to the budget, let's be very transparent about it. For example, अगर हमारी booking हो चुकी है, which happened with me actually. So for example, if it is a 1 plus wedding, 1 lakh plus wedding, ठीक है, but there are only just 10 to 15 people. Earlier, we were supposed to be a team of 4 or 5 people जाने थे वहाँ पे. So now they are expecting just 2 of them should be sufficient. Or somehow they are also telling that we would not require a full-fledged photo book. So compromises are happening on the both ends, right? So we might have to go down a bit, but हमारा क्या रहता है? In my case, we have a base package. What we offer to the client. Base package से नीचे हम इसलिए नहीं जाते because base package includes 1 photographer and 1 videographer. ठीक है, both of them are must at the moment. So base package रखना ही पड़ेगा. If we go and compromise below than that, then we are setting a wrong expectation to the clients. Because end of the day, अगर client who is paying, they want quality. Quality हम without team player we cannot give the quality. One person, because that handling a video, handling a still, it's very difficult. It's not an easy job. We want people to be there. So अभी तो at the moment जहाँ तक मुझे लगता है people should, as a photographer, people should invest time in their teams. उनका support करना चाहिए financially. For example, if individually I am getting work, so in an advance in future, because I have weddings lined up, so I hope things might get better down the line. In October, November, these days months are fully packed. So what अगर आपको लगता है कि आपका team member might be running financially थोड़ा सा down, so we can support him or her at this moment. Maybe so his life gets better. Otherwise, जैसे दीपक जी ने कहा कि team को, for example, editing, you can groom up yourself. Skills better होगी team की. So at least end of the day, there will be a different you generating आपके जैसा ही better person. So I don't agree with one thing like
कुछ लोग कहते हैं कि you should not give work to others, they might take your job and all that. That's not like, जो आप हो वो आप हो, that's there. A person can be better than you, but not you exactly, to be very frank. That's what I believe in. So मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने fellow photographers को और कोई भी new who wants to join with me, I definitely sit together, I give them time, because ये time है appreciating work. ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना and all that. End of the day, we all want to grow together. तभी शायद I think photography का future कहीं अच्छी जगह पे जा सकता है. So that's what I would say on this point. ग्रेट ग्रेट। जैसे दीपक जी का और कपिल जी के जो सजेशन आ रहे हैं, तो आई थिंक हमें पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, जो एक मेजर पॉइंट आ रहा है। तो भूमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वेडिंग के जो बजट, करंट वेडिंग के जो बजट हैं, क्या वो कम हो रहे हैं या उसकी क्वेरी कम आ रही है, या आप उसको कैसे हैंडल कर रही हैं? तो इसके बारे में आप बताइए प्लीज। आपका म्यूट है भूमेश जी, आपका म्यूट है कनेक्शन, प्लीज प्लीज। अब आ गई सर। देखिए, बजट का क्या है कि बजट तो सर क्लाइंट बहुत पहले से ही चाहता है कि उसका बजट हमेशा कम हो और उसको सर्विसेज ज्यादा मिल जाए। ये तो बहुत पहले से ही एक ट्रेंड चला आ रहा है। थोड़ा सा इस मौके पर, जैसे अभी डोगरा जी ने भी बताया कि जो जिस जगह पर गैदरिंग बहुत ज्यादा थी, प्रोडक्ट अब थोड़ा सा कम मांग रहे हैं, तो उस बेसिस पर थोड़ा सा बहुत वो बजट कम किया जा सकता है। लेकिन हम अगर दूसरे एंड पर देखें तो क्लाइंट के बेसिस पर वो 400 लोग जो गैदर हो रहे थे, आज वो सिर्फ 50 है। बट एज ए फोटोग्राफर और एज ए ब्राइड और ग्रूम, हम वेडिंग को ना क्लाइंट, वो टोटल क्लाइंट को ना देख करके आप ब्राइड की ओर से देखिए। ब्राइड की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा ब्राइड की होती है, उसके बाद ग्रूम्स की, और फिर उसके बाद उसकी फैमिली की। तो सारी तैयारियां जो है वो ब्राइड करती है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस पूरी शादी में है वो फोटोग्राफी है। लोगों का खाने का खर्चा बहुत कम हो गया। मैं उनको ये सब बताना भी चाह रहा हूँ कि उनके जो 400-500 लोगों की गैदरिंग थी, वो लिमिट हो गई है बहुत थोड़े से में। बट हमारी फोटोग्राफी की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत कम नहीं हुई है। ब्राइड को सब कुछ चाहिए, उसमें पोर्ट्रेट्स भी हैं, उसके गैदरिंग भी है। बस एक थोड़ा बहुत जो कम हुआ एज ए फोटोग्राफर एंड, वो थोड़ा बहुत पार्ट वो कम हुआ जो जिसमें बहुत सारी भीड़ जो उनको नहीं क्लिक करनी थी। उसके लिए हमारे पास जो टीम थी, आज की डेट में भी कैंडिडेट फोटोज, हाँ एक अच्छी चीज ये रहेगी कि कम कम गैदरिंग होगी तो एक फोटोग्राफर क्रिएट बहुत अच्छा कर सकता है। इनफैक्ट वो इनको भी बहुत, मैं एक अभी और किसी वेबिनार में किसी फोटोग्राफर की बात सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही कि अब एक नया ट्रेंड जो लोगों को दिया जा सकता है वो ये है कि जब आपकी गैदरिंग नहीं है और कई सारे रिलेटिव नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनको लाइव स्ट्रीमिंग दे सकते हैं। ये हम फोटोग्राफर ये काम कर सकते हैं हम। तो बजट कम करने की जरूरत नहीं है, उनको उस सर्विसेज को और बढ़ाया जा सकता है। आप उसके बेसिस पर थोड़ा वो रख सकते हैं। बजट बहुत ज्यादा डाउन करने की जरूरत नहीं है अभी। हम एक और चीज मानना होगा कि हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय हेल्प की। तो हाँ, अब ऐसा भी ना हो कि हम 4 लोग जो जा रहे थे उसमें से हमने एक को बोला कि नहीं भाई अब तेरी जरूरत नहीं है, तेरे को नहीं। मुझे लगता है कि आज उसकी ज्यादा जरूरत है। मैंने अभी एक इवेंट क्लिक किया, छोटा सा इवेंट था, उसमें मैं नहीं गया, लेकिन मैंने अपने स्टाफ को बोला कि आप ये दोनों मिल करके ये इवेंट क्लिक कर दीजिए, मुझे पेमेंट मिलेगा। हम सबको मिला और उसमें से इन दोनों को वो पेमेंट मिल गया, मेरे दोनों दोनों स्टाफ को, उनको वो पेमेंट मिल गया। तो इनको इस समय वो जो थोड़ा सा भी पैसा मिला ना, इस समय बहुत काम का है। हम लोगों को जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है उसका बहुत ख्याल रखना है। सर ने भी अभी बोला, वो हमारी एक धरोहर है जो हम अभी तक अपने बारे में सोच पा रहे हैं। हमारे पास शायद 2-3 महीने 4 महीने तक के लिए कुछ गुजारा करने के लिए बात होगी, लेकिन जो हमारा अपना सपोर्टिंग स्टाफ है जो सिर्फ हमारे 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए के ऊपर बेस्ड रहता है, उससे पूरा परिवार के साथ चलाता है, उसका थोड़ा बहुत अपनी खर्च से चलाता है, वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा होता है, वो अपना कुछ फोटोग्राफी भी सीख रहा होता है। और बहुत सारी जरूरी चीज है कि वो इस समय जो हमारे साथ एक बड़ा फोटोग्राफर आने वाले टाइम का फ्यूचर फोटोग्राफर बनने की कोशिश में है, वो इस समय कैमरा खरीदने की सोच रहा होता है कि मैं अगले 2-3 साल, 1-1.5 साल बाद सर के साथ काम करूंगा और फिर वो एक कैमरा खरीद करके फुल फ्लेज अपना काम शुरू कर दूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है हम जो सोच सकते हैं।
तो फिलहाल हमें बजट, जो आपका सवाल था, बजट कम करने के लिए इसलिए भी वो नहीं उठता क्योंकि हमें भी आगे बहुत सारी चीजों पे सोचना है। जी जी, थैंक यू। गुरप्रीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके पास जो अभी जैसे वेडिंग की क्वेरीज आ रही हैं और जो अभी एक पॉइंट हमारा निकल के आया है लाइव स्ट्रीमिंग, तो आप इसके बारे में आपका क्या सजेशन है? इसको किस पॉइंट बेसिस पे कैसे आप इसको लेना चाहेंगे और कैसे सजेस्ट करेंगे? हमारे सभी फोटोग्राफर ऑडियंस ज्वाइन है, तो आप सजेस्ट कीजिए प्लीज। जी सरोज जी, बात पहली तो ये है कि बहुत फोटोग्राफर हमारे पिछले हमें कुछ मीटिंग की थी हमारे जो लोकल फोटोग्राफर सामने बैठ के, तो क्या है कि जो फ्रीलांसर फोटोग्राफर ना वो कॉन्फिडेंस बहुत लूज कर चुके हैं अपना खुद का। पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड मतलब ये जो स्टार्ट हुआ है ना, ये दिसंबर सॉरी मार्च में हुआ है। हम अपना मतलब जो पीक सीजन है वो लगा चुके हैं, हम अपना काम कर चुके हैं। हमें ये चीजें सोचनी चाहिए, हमें पहले तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए कि हम तो वैसे भी मार्च के बाद सीजन बहुत कम हो जाता है, तो हमने मार्च अपना फुल लगा चुके हैं, मतलब फुल काम कर चुके हैं। अप्रैल में का 3-4 शादियां बेसिकली जो हमारा पंजाब साइड बहुत गर्मी हो जाती है, एनआरआईज भी नहीं होते क्योंकि हमारा जो भी बिजनेस है एनआरआई पे डिपेंड है जी। ज्यादातर पंजाब का। तो हम्म, हम अपना काम कर चुके हैं, वैसे भी हम लोग फ्री रहते हैं। अप्रैल ये जो मंथ हो गए जून जुलाई बहुत कम शादियां होती हैं। तो लकीली अभी अभी ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो मतलब जून में हम 3-4 शादियां हम खुद शूट कर चुके हैं। तो ग्रेट। मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि मतलब कॉन्फिडेंस मत लूज करो। हम वैसे भी हमारी छुट्टियां ही थी, तो जैसे दीपक जी ने अभी बोला कि मतलब काम खत्म करो, हमें काम खत्म करने के लिए टाइम मिल रहा है। और दूसरी चीज, ये जो मैंने अभी रिसेंटली 3-4 शादियां शूट की ना, तो मतलब गैदरिंग कम हुई है। जैसे अभी भुवनेश जी ने भी बोला कि एक्सपेक्टेशंस वही है कस्टमर की। अभी रिसेंटली मैं जो आज अभी शादी शूट करके सुबह आया हूँ 6 बजे, तो क्या मैंने लास्ट ईयर उसकी मतलब भाई की शादी शूट की हुई थी, तो वही कस्टमर के एक्सप्रेशन, भैया आपने ड्रोन तो लगाया नहीं, मतलब ये नहीं किया एंड वो, मतलब एक्सपेक्टेशंस वही हैं। तो अभी मैंने 3-4 शादियों से यही सीखा है कि मतलब हमें वही करना है जो हम पहले कर रहे थे। अभी क्या हम मतलब कस्टमर को कैंडिड फोटोग्राफी भी चाहिए, सिनेमेटोग्राफी भी चाहिए, चाहिए सब कुछ। जब वो बुक करवाने आता तो बोलता है कि यार 50 लोगों का ही तो काम है। तो ये चीज सीखने के लिए मिली है कि करना हमें वही है जो हम पहले करते आ रहे थे, हमें वही करना है। हमें मतलब बजट में सिर्फ, जब हम पहले एल्बम भी बनाते तो क्या 300 फोटोज की एल्बम बनाते थे, चाहे 500 लोगों की गैदरिंग थी या 600 की गैदरिंग थी, काम वही करना है। पर थोड़ा बहुत बजट में हमें गिरावट इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि टाइम ही ऐसा है, सबके पास कैश प्रॉब्लम है ही है, चाहे जिसका जितना काम है। तो क्या है कि हम अपना काम कर चुके हैं, हम अपना सीजन लगा चुके हैं, हमें यही चीज ध्यान में रखनी है कि कुछ नहीं होता, ये होएगा। अभी आगे काम बहुत है, अच्छा सीजन है, सब रिजॉर्ट्स को भी परमिशन मिल चुकी है। लाइव स्ट्रीमिंग ऐसा है कि पंजाब में बहुत चलता ही है यूजुअली। अगर हम महीने में फर्ज कर लो 5 शादी शूट करते थे ना, में लाइव स्ट्रीमिंग करते थे क्योंकि हमारा पंजाब में किसी का चाचा बाहर है वो नहीं आ पाया, तो ये मतलब कॉमन है हमारे लिए पंजाब में। हमारे इधर चलता ही ऐसा क्योंकि सब बाहर से आते हैं। तो लकीली काम अच्छा चल रहा है। अभी जून में इतनी शादियां, 5-6 शादियां मैंने शूट की हैं टोटल। मतलब जून में कभी भी हम इतनी शादियां शूट नहीं करते। ये तो मतलब चल रहा है काम। लोग शायद सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, लॉकडाउन फिर से ना हो जाए, बहुत चीजें हैं तो लोग कर रहे हैं शादियां। तो मैं यही बोलूंगा कि हम अपना काम कर चुके हैं, हमारा सीजन लग चुका है, तो हमें मतलब कुछ इतना डरने की जरूरत नहीं है। बस फोटोग्राफर हो या फ्रीलांसर ना, ये मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बेस्ट होगा। ग्रेट। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये एक अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है, एक अच्छा टूल है लाइव स्ट्रीमिंग का, तो इसको हम कैसे यूटिलाइज करना चाहिए आने वाले वेडिंग्स में या क्वेरीज में अगर आपके पास आ रही है, तो प्लीज बताएं आप। सौरभ जी देखिए, पहले तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ गुरप्रीत पा जी से भी और हमारे सीनियर है भूमेश जी उनसे भी, कि प्राइस कम करने वाला कोई फंडा मुझे तो नजर नहीं आता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हम कर रहे थे वो हम वही कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा। और ऑन द कॉन्ट्ररी क्या हो रहा है,
अभी मैं कल एक क्लाइंट मीटिंग में था और मैंने अपनी ब्राइड से ये कहा, मैंने उनको कहा कि उल्टा अच्छी बात है, आपका पहले स्टेज इतनी देर चलता था, अब आपका स्टेज कम चलेगा तो आपको पोर्ट्रेट्स के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, है ना, आपका सिनेमैटिक शूट अच्छे से हो पाएगा। वैसे भी आप जैसे गुरप्रीत पा जी ने कहा कि एल्बम में तो आ जाके उनके ही फोटोग्राफ्स लगने हैं ना, उनको उसमें तो वो फोटो बुक में तो वो खाना खाते हुए लोग तो हम कभी भी नहीं दिखाते थे। और इसमें भी एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी गैदरिंग हम 400-500 की गैदरिंग होती थी, उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम 1 या 2 या 3 शूटर ट्रेडिशनल या एक कैंडिड हम लगा देते थे। अब आ जाके तो वो 2 शूटर ही कम हो रहे हैं ना, जो बेसिक हमारा काम है वो तो वही है। अगर मेरे को 2 सिनेमैटिक चाहिए थे, वो तो मेरे आज भी 2 सिनेमैटिक लग रहे हैं। जहां तक रही आपने की लाइव स्ट्रीमिंग की बात, तो लाइव स्ट्रीमिंग हम पहले भी कई इवेंट्स में करते रहे हैं, जहां पे कोई क्लाइंट के रिलेटिव या जो एब्सेंट हैं या कुछ बुजुर्ग थे वो नहीं आ सकते थे, तो उनके लिए हम करते रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आप अभी देखिए जे.एंड.के की अगर मैं बात करूं, जम्मू से मैं हूं, मैं जे.एंड.के की बात करूं तो हमारे यहाँ पे तो इंटरनेट पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, राइट, एज ऑफ नाउ, और काफी देर से है। सो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग अभी टेक्निकली इज नॉट पॉसिबल, ऑल्दो इट्स ए गुड थिंग। अगर आप कर सको आपको करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि रादर देन अपने पैकेज पे कॉम्प्रोमाइज करने से, मार्केट के रेट खराब करने से, आपको ऐसी एडिशनल चीज अगर देनी पड़ जाए जिसमें कोई खास एफर्ट नहीं लगता या कोई एक्स्ट्रा मैन पावर आपकी इतनी नहीं लगती, आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं अपने मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए भी पॉसिबल नहीं है। अभी देखिए मैं इंडोर हूँ, मेरे पास वाईफाई है, तो मैं आपसे लाइव स्ट्रीमिंग पे भी बात कर पा रहा हूँ ना। अगर मैं इफ आई वुड बी आउटसाइड, मैं शायद आपसे इतनी क्लियरली बात ना कर पाऊँ। सो लाइव स्ट्रीमिंग इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल हियर इन जम्मू, बट डेफिनेटली पंजाब या और जो और भी ऑल अक्रॉस द कंट्री जहां पे 4G कनेक्शन अवेलेबल है, लाइव स्ट्रीमिंग इज अ वेरी गुड थिंग। अब इसमें देखने वाली चीज ये है कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग को अगर करना है, एक डेडिकेटेड पर्सन आपको हायर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें, if you are a professional, if you call yourself a professional person, you take the liberty of calling yourself a professional person, you have to act professionally also, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को मोबाइल पकड़ा दिया और वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। यू हैव टू प्रॉपरली हायर ए पर्सन जो कि आपका फुल सेटअप करे, लैपटॉप लगाए, एक अच्छे मिररलेस या डिजिटल कैमरा से उसको स्ट्रीम करे, है ना। और काफी एप्स हैं जिनको यूज करके हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। एंड देयर इज एम्पल नॉलेज विच इज अवेलेबल ऑल अक्रॉस द इंटरनेट ऑल्सो। आप अगर सर्च करेंगे, यूट्यूब करेंगे, आपको कहीं सीखने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है। अब जहां तक इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करूंगा, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे भाई जो फ्रीलांसिंग करते हैं या जो भी, वो थोड़े घबराए हुए हैं, तो डेफिनेटली हमें उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए। अगर किसी की कोई आपके पास पेमेंट रुकी पड़ी है, आप प्लीज उसे क्लियर कर दें, बिल्कुल राइट अवे आप उसके पैसे दे सकते हैं। उसको एक बहुत बड़ी हेल्प होगी, एक सपोर्ट होगी। आप उसे मॉरली उसके साथ जुड़ सकते हैं, कि सपोर्ट कर सकते हैं, उसे बुला सकते हैं, या टेलीफोनिकली व्हाट्सएप फेस टाइम पे उससे बात कर सकते हैं, मॉरल बूस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा आप हेल्प जो उसे कर सकते हैं वो ये है कि आप उसको उसके स्किल शार्पन करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, एक फ्रीलांसर है, उसको पता होता है कि मेरा, अभी देखिए आप एक स्टूडियो ओनर है, आपको पता है मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, आपके पास टाइम भी होता है नया कुछ सीखने के लिए। एक फ्रीलांसर के पास ना ही इतनी सोच, ना ही इतनी एनर्जी बेचारे के पास वो जुटा पाता है कि वो काम करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा सीख रहा है या कोई क्लासेस अटेंड कर रहा है। उसका हैंड टू माउथ चलता है, वो उस हिसाब से अपना काम करता है। अब अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्या आप उस फ्रीलांसर के लिए कुछ कंपैशनेटली कुछ क्रिएट कर सकते हो या कुछ को हेल्प आउट कर सकते हो? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं काफी समय से, साल 2 साल से सोच रहा था आई शुड स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, रिगार्डिंग फोटोग्राफी एंड ऑल। अगर मुझे कोई 2 पैसे की नॉलेज है तो मैं उसे शेयर करता हूँ। अब लॉकडाउन के चलते क्योंकि काम कम था, आई हैव स्टार्टेड इट एंड आई एंड सबसे बड़ी चीज उसमें मैंने ये की, लोग सोचते हैं कि यूट्यूब सिर्फ लोग पैसे के लिए करते हैं। आई हैव नॉट मोनेटाइज्ड इट, ठीक है। सो आई एम नॉट, लोगों को पता है देयर इज नो एड रनिंग, दिस पर्सन इज नॉट डूइंग दिस फॉर मनी। और मैं उसमें जो भी बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी है, अपर्चर कैसे काम करता है, या शटर स्पीड, या जो भी कंपोजिशन स्किल्स क्या है, रूल ऑफ थर्ड्स किसे कहते हैं, अब ये चीजें एक फ्रीलांसर अगर देखेगा, जानेगा, तो जिस एवोल्यूशन की हम इनिशियली बात कर रहे थे कि कुछ और कर सकता है, पोर्ट्रेट शूट कर सकता है या प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकता है, या अब जैसे मेरे एरिया में ट्रैवल इंडस्ट्री है, हिमाचल में ट्रैवल इंडस्ट्री है, होटल शूट्स कर सकता है, इंडोर शूट्स कर सकता है, रियल एस्टेट शूट कर सकता है। पर वो सब करने के लिए जो स्किल चाहिए वो तो उसे एक्वायर करना है ना, और वो स्किल आप उसे दे सकते हैं, हम उसे दे सकते हैं।
हम अगर उसे हेल्प आउट करते हैं, अभी कल एक फ्रीलांसर मेरे लिए काम करता है कई बार, वो मेरे से बात कर रहा था, उसने गिम्बल खरीद लिया। अब गिम्बल तो खरीद लिया लेकिन गिम्बल चलाना भी है। सो ही टॉक टू मी कि मेरे को कैसे चलाना है और कैसे करना है। सो मैंने व्हाट्सएप कॉल पे उसके साथ बात की, बिकॉज ठीक है स्टिल एवरीथिंग इज ओपनिंग, लेकिन यू शुड टेक एम्पल केयर कि आप जहां जितना कांटेक्ट कम हो सके उतना कांटेक्ट आप कम कीजिए। इनफैक्ट क्लाइंट मैं तो इनफैक्ट काफी क्लाइंट मीटिंग्स भी इस फेस टाइम पे या व्हाट्सएप कॉलिंग पे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सो दैट मिनिमलिस्टिक कांटेक्ट हो। सो मैंने उसे व्हाट्सएप पे थोड़ा समझाया कि देखो यार इसके ये बटन्स होते हैं, एक दो वीडियोस उसको रिकमेंड कर दी कि यार तुम खोल के देखो, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो जब आप उसको इस तरह से हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो बंदा फोटोग्राफी से हटके कुछ नहीं सोच रहा, वो उसका कंसंट्रेशन लेवल सिर्फ फोटोग्राफी की तरफ रह रहा है। तो आप उसे उसे एंगेज कीजिए, उसे कुछ सिखाइए, उसे कुछ स्किल सिखाइए, उसे कुछ टास्क दीजिए, उसे अपने साथ इवॉल्व कीजिए। और डेफिनेटली अगर आप उसे मदद कर सकते हैं, अभी लोग चैरिटी कर रहे हैं। मैंने इनिशियली जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मैंने सबसे व्हाट्सएप पे हर जगह एक रिक्वेस्ट की थी कि द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी यू कैन डू इज पे द सैलरीज ऑफ योर एम्प्लॉइज एट टाइम। ठीक है, इससे बड़ी चैरिटी कोई नहीं है। अगर आप पीएम केयर फंड में पैसा डाल रहे हैं ना, तो अगर आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी काट के वो पैसा डाल रहे हैं तो उस चैरिटी का कोई फायदा नहीं है ना। सो पे द सैलरीज ऑफ योर एम्प्लॉइज, और आपके एम्प्लॉय का ट्रस्ट बिल्डअप होएगा। आपके एम्प्लॉय को या आपके फ्रीलांसर का अगर आप पैसा टाइम से दे रहे हैं, उसे पता चलेगा आई एम वर्किंग विद द राइट पर्सन और ए राइट कंपनी। एंड व्हेन दिस सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट इज डेवलप्ड, वो कभी आपको प्रायोरिटी देगा, कभी आपके काम में कभी लापरवाही नहीं करेगा और आपके साथ हमेशा लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा। सो ये है। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग सर जहां पे इज पॉसिबल डेफिनेटली इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, बिकॉज ये आज कोरोना सिचुएशन है, बट डेफिनेटली ये एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट है, क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन के चलते कोरोना ना भी हो तो दुनिया के अलग अलग, जैसे पाजी ने कहा कि हमारे काफी एनआरआई क्लाइंट्स रहते हैं, तो अभी हर कोई तो नहीं आ सकता ना, बट डेफिनेटली अगर आप उसको एक लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस दे रहे हो, तो जो लोग नहीं भी अटेंड कर पाए तो वो भी उसका एक ग्लिम्स ले सकते हैं इवेंट का। तो प्रॉपरली राइट। थैंक यू। कपिल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो लाइव स्ट्रीमिंग का पॉइंट अभी दीपक जी सजेस्ट कर रहे थे, इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? आपके एंड पे जैसे हिमाचल में ये रिक्वायर्ड है, वहाँ पे क्वेरीज आ रही हैं, और आप इसको इस टूल को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहोगे? Yeah, surely. I totally agree with Gurpreet Paji and Deepak Sharma. Almost they have covered everything when it comes to the live streaming. Okay. So, अभी recently I attended one wedding. उसमें क्या था that client most of जिनके relatives थे, quite a posh family. So they almost were abroad or in Bangalore. At the moment also अभी भी interstate movement is like barred so far. So live streaming is a must, to be very frank. I think अगर मान लो 50 people की wedding allowed at the moment, so I think maximum people will be like not part of the wedding. जो भी friends हो गए, you cannot call, I think friends की list ही more than 50 रहती है normally, so you cannot call everyone. So live streaming में यही है, you can definitely pitch in अगर client को होता है. For example, few people they do it on their own, they have their tabs and all that, but ये जरूर है कि to increase your team number, ताकि जो आपके fellow photographer है and any, for example, if you do not need a light person, you can make him as a, you know, with the equipment as a live streaming person. So इससे यही होगा कि you are creating more jobs, you are trying to give work to everyone. I think this is very much important. आप जितने creative इसमें हो सकते हो, that is more flexible. I think वो सबको पसंद आएगा, because there are emotion attached. जब weddings होती है कोई, for example, if I would not have my sister on my wedding, so I would miss that moment. So मैं चाहूँगा कि I could see her at least, you know, visit, you know, like through a video purpose, like I could hear her how she and how I am happy about it. So this is how. So I think it's very important that if we can add on that, every photographer must do that. Yeah, great. Thanks. उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो वेडिंग करंटली हम कम सेंस के साथ कर रहे हैं, 50%, 25%, तो उसमें कोविड की हमें किस तरह से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जिससे हमारी फोटोग्राफी इंडस्ट्री पे भी कोई किसी तरह का कोई सवाल या क्वेश्चन ना आए? तो आपकी राय जानना चाहूँगा। सर
सर हमने पिछले कुछ सालों में ना कुछ महीनों में इसके प्रिकॉशंस के लिए बहुत कुछ सीख लिया है। हालांकि ये सारा कुछ हमारे इंडियन जो माइथोलॉजी है, हमारे जो पुराने सैद्धांतिक चीजें थी, वो हम शायद रिपीट कर रहे हैं। जूते बाहर उतारते हैं आजकल, हाथ मुंह धो करके ही अंदर घुस रहे हैं। हम ये सब कुछ पुरानी परंपराओं को इस कोविड ने दोबारा शुरू करा दिया है। हम ना हम अब आपको जिस तरह से फोटोग्राफर्स को एक इवेंट में जाना है ना, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करते थे कि हम भीड़ से दूर रहते, भीड़ के पास पास जाकर के वाइड एंगल से फोटोज क्लिक करना शुरू करते थे। आज शायद उसकी जरूरत नहीं है। हम एक बात और सोचें कि अगर मुझे 10 फोटो कम मिल गए ना, नो प्रॉब्लम। मुझे किसी का बहुत पास जाकर के जो फोटो क्लिक करता था वो नहीं मिला, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 फोटो कम हो जाए, मेरी लाइफ बच जाएगी। हम फोटोग्राफर को ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भीड़ आ रही है, कोई बहुत ज्यादा क्राउड है या कुछ और चीजें हैं जिसमें हम बहुत पास जाके फोटो क्लिक करते हैं, प्लीज डू नॉट दैट। आप बिल्कुल नहीं करना उसको। साथ साथ कभी कभी हम जाने अनजाने ना किसी भी व्यक्ति से फोटो क्लिक कराते हुए उसका पोज बनवा लेते थे। अब दोनों की सेफ्टी के लिए, क्लाइंट की और अपनी सेफ्टी के लिए, दोनों की उसको रखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उन सब चीजों को ध्यान रखें। बार बार जरूरत पड़े तो, जब हमारे पास अगर आसपास पानी वानी है, तो हम क्या हो रहा है कि हम कुछ चीजें छू लेंगे, कोशिश करें कुछ और चीजें ना छुए, वहां पर छू लेंगे। अगर छू भी रहे हैं तो बीच बीच में सैनिटाइजर यूज करते रहे, क्योंकि वही हाथ जो है ना, हमारे कैमरे को छू रहा है, कैमरे के साथ साथ मेरे बैग को छू रहा है, कुछ और है, कुछ सामान निकाला है। तो इस बीच में सबको ये भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को ना कभी कभी आदत होती है नाक खुजाने की, किसी को आदत होती है चश्मा ठीक करने की। तो अब इन सब चीजों को भी ना हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हम जब काम कर रहे हैं, काम करते करते पता नहीं मुझे क्या छुआ, और छूते छूते मैंने चश्मा छू लिया, चश्मा उतार लिया, मान लीजिए मैंने चश्मा उतार करके हाथ से साफ कर लिया, ऐसे ही कर लिया। इस बीच में भी ना जो डर था ना, जो एक वायरस का डर है, वो उसका अटैचमेंट मेरी बॉडी से फिर हो सकता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें इस समय ध्यान रखना है। खासकर पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हुए मेरे पास हमेशा मास्क लगा रहना चाहिए। कोशिश तो देखिए, जब हम आजकल वेडिंग में जाएंगे ना, तो मास्क लोग यूज कर रहे होंगे, लेकिन सामने वाला हो सकता है वो बहुत तरीके से वो मास्क यूज ना कर रहा हो। आज उन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि मुझे अपने आस को नहीं, और मुझे अपने आसपास को जरा थोड़ा सा क्लियरेंस रखनी है चीजें। जी जी, जैसे कि अभी तक हमने जिन भी टॉपिक पे डिस्कस किया है और जो कवर किया है, उसमें मैक्सिमम जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि हमें पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बजट के ऊपर वैल्यू एडिशन नए ऐड ऑन करने चाहिए, और हमें अपनी टीम को, फ्रीलांसर को मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहिए। तो ये भी एक भूमेश जी का अच्छा पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि जैसे अभी वेडिंग्स के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो जितना हम अपना सेफ्टी प्रिकॉशन यूज करेंगे एंड क्लाइंट के लिए, तो एंड क्लाइंट की क्वेरी भी आएगी भी ये वेडिंग फोटोग्राफर्स प्रॉपरली हर सेफ्टी मेजर्स को यूज कर रहे हैं, तो वेडिंग में कोई चैलेंज नहीं आएगा। जैसे गुरप्रीत जी ने अभी कल बता रहे हैं, जैसे वो वेडिंग भी क्लिक करके है, तो सेफ्टी मेजर्स हमें कोविड के नए ट्रेंड के हिसाब फॉलो करने पड़ेंगे। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ दीपक जी आपसे, फ्यूचर में वेडिंग के बिजनेस को हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, फोटोग्राफी सेक्शन में क्या चीजें हमें ऐड ऑन करनी चाहिए जिससे हम अपने नंबर्स ऑफ वेडिंग को बढ़ा सकें, अपने बजट को और इंक्रीज कर सकें, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। सौरभ जी, बिफोर हम इस बारे में बात करें, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन आ रहे हैं कि कुछ, या आप उसे साथ साथ आंसर कर रहे हैं? दीपक जी, क्वेश्चन का सेशन हम एग्जैक्ट 1 o'clock स्टार्ट कर लेंगे। ओके, राइट राइट। एंड तो और आप जो इनिशियली बोल रहे थे फेसबुक पे करने का, उसका क्या कुछ है? जी जी जी, तो वो भी मैं अभी सभी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा हाँ, भी हम अपना जितना भी डिस्कशन ये वेबिनार पे हो रहा है, ये हमारा सारा वीडियो फेसबुक पे अपलोड होगा कैनवरा पेज पे, तो आप इसको बाद में भी जाके देख सकती हैं। तो जिन्होंने अभी श्योर अटेंड श्योर। किया हुआ है वो देख रहे हैं, तो बाद में इस वीडियो को आप वहां पे जाके क्रॉस चेक करके देख सकती हैं। सौरभ तो जी, एक मिनट दीपक देना मुझे। जी 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 एक्चुअली क्या है कि जो कोविड के टाइम पे हम जो वेडिंग शूट कर रहे हैं ना, जी तो क्या होता है कि बहुत गेस्ट ने मास्क नहीं पहने होते।
जी तो क्या होता है कि माहौल वहाँ पे म्यूजिक तेज होता है, जो भी मैंने रिसेंटली कल जो मैंने देखा, मतलब बहुत मतलब 50-70 लोग की शादी थी, तो उसमें से आई थिंक 10-15 लोगों ने मास्क पहना होगा, जो पीछे पीछे रहने वाले, जो मतलब बहुत ध्यान रख रहे हैं खुद का। तो क्या था, हम लोगों ने मास्क मास्क वगैरह पहन के रखा था, ग्लव्स वगैरह। तो क्या था कि वहाँ पे मतलब माहौल ऐसा बन जाता, म्यूजिक, मास्क दिखते नहीं है लोगों के, हम खुद का भी नीचे कर देते हैं। तो उस टाइम पे मतलब भूल ही जाते हैं कि कोविड चल रहा है, मतलब कि हमें ये सिचुएशन बन जाता है, हम भी अपने काम में इतना मसरूफ होते हैं कि भूल जाते हैं। तो कल मेरे स्टाफ ने मतलब जब मैं पोर्ट्रेट शूट करने के लिए मतलब गया ब्राइड के, तो मैंने आया, मेरे स्टाफ ने मास्क वगैरह सबने उतारे हुए हैं। तो बोल रहे कि यार गर्मी है एंड ऑल, ये चीजों का मतलब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हम भूल जाते हैं शादी पे जाके। मैंने 3 शादी रिसेंटली बैक टू बैक शादियां शूट की हैं, तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है कि कम लोग आ रहे हैं, हमें मतलब इतने अच्छे अच्छे शॉट्स मिल रहे हैं, और शादी शूट करने का मजा ही अभी आया है 3-4 दिन में। मतलब पोर्ट्रेट शूट करने का इतना मतलब टाइम मिल रहा है अच्छे से, और 2 फोटोग्राफर, जो वैसे पहले 2 शादियां शूट की, मतलब हम ही खुद थे, वन साइड फोटोग्राफर थे। कल हम 2 टीम्स काम कर रही थी, दूसरे फोटोग्राफर भी और हम भी, मतलब सेपरेट सेपरेट टाइम मिल रहा है, मतलब काम बहुत अच्छा हो रहा है। पर हम भूल रहे हैं कहीं तो कोविड को, जब शादी में जाते हैं माहौल ऐसा होता है, हम ग्लव्स भी उतार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर मैंने 3 शादी शूट की ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी नॉर्मल हो गया है। जब हम फर्स्ट टाइम जब मार्च में शादी शूट की मैंने, रिसेंटली जो शादियां लोगों ने कम बड़ी शादियां थी छोटे में की, तब कोविड हमारे पास इतना नहीं था, मतलब नंबर्स ऑफ केस इतने नहीं थे, हम बहुत ध्यान रख रहे थे, ग्लव्स भी पहन रहे थे, कस्टमर से दूरी बना के रख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अभी क्या है कि हमारे में डर कम हो रहा है, जो मैंने कल देखा है, बहुत लोग ऐसे ही चल रहे हैं सब। मतलब होटल्स में पहले क्या था, मैंने मार्च में एक शादी शूट शूट की थी, मतलब 25 लोगों की शादी होगी हमारे यहाँ कपूरथले बेस्ट वेस्टर्न में, उन्होंने परमिशन वगैरह लेके सब कुछ किया, 100, वो हॉल बहुत बड़ा था, मतलब शादी 25 लोगों की थी, मतलब 25 के 25 लोगों ने मास्क पहन के रखा था, इवन फोटोग्राफर। तब डर था, अभी हम भूल रहे हैं बहुत, जो मैंने 2-3 दिन में ये देखा है। मैं खुद भी मास्क उतारा था, मतलब वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, माहौल ही ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, हम भी घुस जाते हैं अपने काम में। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ है क्या नहीं है, सेफ्टी मेजर, मतलब एक बंदा हमें, मतलब जो फोटोग्राफर है, लड़के काम कर रहे हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो रही हैं ये सब चीजें, मैंने नोटिस किया ये 2-3 शादियों में, रिसेंटली मैंने 3 शादियां शूट की, ये भी 4-5 दिन में, तो ये हो रहा। जी 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 हम्म। डेफिनेटली सेफ्टी मेजरमेंट फोटोग्राफी और हर एक ट्रेंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा फोटोग्राफी बिजनेस ही ऐसा है, हमें मैक्सिमम गैदरिंग में जाना पड़ता है और हर एक सेफ्टी और सिक्योरिटी को फॉलो करना ऊपर चाहिए। से हमारे इधर की साइड में बहुत गर्मी भी हो रखी है, तो जी हमें मतलब चिड़चिड़ नहीं करना, कस्टमर के सामने में खुश रहना। तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसे रिमूव कर देते हैं, बट वो सही नहीं है। मतलब मैंने खुद ही किया, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने लगा के रखा, पर होता है, पर ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म। रोड सेफ्टी। दीपक जी जैसे मैंने आपको बताया भी, हम क्यूए सेशन में अटेंडीज के क्वेश्चन भी लेंगे, कुछ क्वेश्चन आए हैं, श्योर। तो वो सभी पैनलिस्ट की स्क्रीन पे भी अवेलेबल है। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है तो आप लोग भी उसका रेट करके, जो कॉमन क्वेश्चन होगा। तो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा था दीपक जी, आप कुछ सजेशन दे भी हमें फ्यूचर वेडिंग के बिजनेस को अपग्रेड और बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह की हमें क्वेरीज को हैंडल करना चाहिए, बजट को कैसे हैंडल करना चाहिए, एग्जिस्टिंग जो हमारा बजट है उसको हमें मेंटेन रखने के लिए क्या पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए, आप बताएं प्लीज। देखिए सौरभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि हर चीज इस तरह से टर्न अप हो रही है कि हर चीज को ऑनलाइन हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाए। अगर मुझे ग्रोसरीज तक लेनी है तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन बुला लूं, है ना, सो दैट कि मुझे किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आना पड़े। सो until and unless you have a online presence, आपके लिए फ्यूचर इज टफ। आपके पास आज क्लाइंट आपके स्टूडियो में भी आने से कतराएगा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मिलूं कि ना मिलूं, है ना। ऑल्दो आप यू कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, आप सैनिटाइज कर सकते हैं एंड एवरीथिंग, जैसे गुरप्रीत जी ने कहा, लोग ध्यान अब थोड़ा कम रख रहे हैं, सो वो और अलार्मिंग बन जाता है।
सो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्डअप करना पड़ेगा, सो दैट आप अपना काम ऑनलाइन शेयर करा दर किसी के पास जाके उसे एल्बम या कोई फोटो बुक या प्रिंट्स दिखाने से आप ऑनलाइन अपने आप को मार्केट कर सकें। अब यहाँ पे मैं छोटा सा एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, बिकॉज हम कैनवेरा के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो कैनवेरा के प्लेटफॉर्म की एग्जांपल रख के मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कैनवेरा का अपना वेबसाइट है, आप उस पे रजिस्टर कर सकते हैं। लोग वहां पे सर्च करते हैं, तो अगर गूगल सर्च करते हैं, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, अब मेरा तो पूरा मॉड्यूल ही ऑनलाइन है, तो मैं मेरे पास वेबसाइट है, मेरा सब आई होप सबका ही होगा वैसे तो, बट जिनका नहीं है तो वो कैनवेरा का के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, वहां पर अपना काम पोर्टफोलियो बना सकते हैं, शो कर सकते हैं, कोई क्लाइंट पूछता है तो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्लाइंट के साथ इन टच रहने के लिए एक 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 सोर्स ऑफ वो मिलेगा ऑनलाइन मीडिया कि आप अपना काम दिखा पा रहे हैं। सो बिकॉज आप कैनवेरा के थ्रू दिखा रहे हैं, एक क्रेडिबल साइट है जो जिसके थ्रू आप देख रहे हैं, तो क्लाइंट में भी एक कॉन्फिडेंस इंड्यूस होता है कि हाँ यार ये बंदा कुछ करने लायक है या कुछ कर सकता है ना। सो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जहां तक रही प्राइजेस की बात, मैंने बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी आपसे ये कहा, आने वाले टाइम में आप एक मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आई बॉट ए हेडफोन्स फॉर माई सेल्फ। मैंने एक हेडफोन खरीदा कुछ समय पहले, और वो उस टाइम अमेजोन पे सेल पे था, तो मुझे वो अराउंड अबाउट 25% ऑफ पे मिला। मेरे ख्याल से 5,000-5,500 का वो मुझे मिला। अभी वो थोड़े देर पहले आई लॉस्ट वन ऑफ द लाइक ईयर पीसेस, सो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि आप मुझे दोबारा ऑर्डर कर दो वो, एंड शी व्हेन शी ऑर्डर ट्राइड टू पुट एन ऑर्डर, शी सेड कि हाँ वो कोई 6,500 में मिल रहा है। तो आई सेड कि नहीं, पहले तो वो 5,500 में मिला था, अभी क्यों महंगा हो गया? सो शी सेड कि उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। सो आप समझ सकते हो, अगर अमेजोन पे आप आज किसी भी चीज को उठा के देख लो, किसी चीज पे डिस्काउंट नहीं है। जिन चीजों पे 30% भी डिस्काउंट हुआ करता था, आज उस पे भी डिस्काउंट नहीं है ना। सो मैं अमेजोन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन मार्केटिंग में दे आर द बेस्ट। आप हमें अगर कुछ सीखना, बेस्ट से सीखना चाहिए। तो अगर ये लोग अपना प्राइस नहीं घटा रहे, तो व्हाई शुड आई? क्या मैं कम मेहनत करूंगा? क्या देखें, अगर कैमरा, पहले तो हम फोटोग्राफर्स है ना, जो हमें अपने दिमाग से ये चीज निकालनी पड़ेगी कि पिक्चर ले कौन रहा है? पिक्चर मैं ले रहा हूं। अगर कैमरा पिक्चर ले सकता तो फिर तो आज सबके पास कैमरा है। my client is not paying for the camera I am holding. My client is paying for my vision, my perspective, how I do my job, है ना, my experience, my time. हमें सबसे पहले ये समझना है, क्लाइंट मेरे कैमरा के लिए पैसे नहीं दे रहा। अभी तो एक एमेच्योर बंदा कैमरा उठा के चला जाएगा, क्या वो आपके जैसा काम कर सकता है ना। सो आपकी ट्रेनिंग का, आपके द इयर्स यू हैव स्पेंड लर्निंग these टेक्निक्स या एक्सपीरियंस गेन करने का, क्लाइंट उसका पैसा दे रहे हैं, तो वो कभी भी कम नहीं हो रहा। वो कोविड के आने से कम नहीं हो जाएगा। क्या आप अपना एफर्ट कम करोगे? ऑल्दो हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से पैकेज को हैम्पर करना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप कुछ चीज एडिशनली किसी को दे सकते हो, आप कुछ एडिशनल उसको बेनिफिट है। वी हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स अवर क्लाइंट आल्सो। जैसे कपिल जी ने पहले कहा कि अगर आपने किसी से एडवांस ले रखा है, अभी मेरे काफी इवेंट्स थे, हम वी टेक जो भी एडवांस लेते हैं, हम वी रियली आई पुट ए मेल टू ऑल माय क्लाइंट्स कि भाई आपका एडवांस इज सेफ विद अस, डोंट वरी, ठीक है। जब भी आपके इवेंट होंगे वी विल अकोमोडेट यू एट फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर एक्स अमाउंट अपने क्लाइंट से लिया तो मैं अपने क्लाइंट को बोलूंगा ठीक है यार मैं तुझे 20% छोड़ दूंगा। दिस इज नॉट ए हेल्दी बिजनेस। मार्केट के प्रोपोर्शन को खराब करेंगे ना, इट विल कम बैक टू यू, इट विल हॉन्ट यू एंड इट विल कम बैक टू यू। अगर आज आप बोलेंगे कि नहीं यार मैं इसका काम खराब करने के लिए मैं अपने रेट्स खराब कर लेता हूँ, कल वो और खराब करेगा तो आ जाके यू विल बी द लूजर, है ना। सो प्राइस कम करने का, आपको सिर्फ ये रियलाइज करना है आप प्राइस किस चीज का ले रहे हो। मैं अपने टाइम का प्राइस ले रहा हूँ। मेरा टाइम आज भी उतना ही वर्थ है जितना कोविड से पहले था, और उसके बाद भी उतना ही वर्थ रहेगा, है ना। सो प्राइस के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर टाइम। अपनी वैल्यू कभी कम मत करो। और ये बेसिकली क्या है, वो जैसे गुरप्रीत जी ने कहा कि लोग डीमोटिवेटेड है, उनको लग रहा है कि पता नहीं ये दुनिया का खत्म है या फोटोग्राफी का एंड है। ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पे आप ऑनलाइन देखिए, इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स हैं, दे आर शूटिंग ऑनलाइन थ्रू थ्रू फेस टाइम शूट कर रहे हैं, है ना। सो ठीक है, स्टिल इंडिया में उतना अभी ट्रेंड नहीं है उस तरह का, पर कर सकते हो। अभी आपको मैं बताऊं, मैंने अभी एक रिसेंटली एक जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अवर फ्रेंड्स एंड दीज पीपल, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आई ट्राई टू नरेट कि आप घर बैठे कैसे थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकते हो, है ना। इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, फाइबर है, आप फाइबर के साथ असाइन कीजिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इवन फॉरेन से लोग आपकी सर्विस, अगर आप अच्छे एडिटर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप कोई भी काम करते हैं, डिजाइनर हैं, है ना, आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, कैनवेरा का प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास अपना वेबसाइट नहीं है। उसके बाद आप Amazon एफिलिएट के साथ जुड़ सकते हो। आप स्टॉक फुटेज, आप घर के बैकयार्ड में जाओ, एक गुलाब का फोटो या एक फूल का फोटो खींच के भी अगर आप स्टॉक वेबसाइट पे डालोगे ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, वहां से आपको कुछ पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी। सो वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन सम पैसिव इनकम्स आल्सो। अगर आप ये सोचोगे मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूं, मैं सिर्फ वेडिंग पे ही डिपेंडेंट रहूं, ठीक है, वी आर प्राइमरली इनटू वेडिंग इज अवर ब्रेड एंड बटर, मैं इसे डिनाई नहीं करता। अभी मैं आपको बताता हूँ अपना रिसेंट एक्सपीरियंस। आई बुक्ड ए क्लाइंट, मतलब बहुत पहले, आई डोंट इवन रिमेम्बर, शायद दिसंबर में मैंने उन्हें बुक किया था, और 23rd मार्च को देयर एंगेजमेंट वाज सपोज टू हैपन। अभी क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन हो गया और पहला चरण जो था लॉकडाउन का वो बड़ा टफ था, तो उन्होंने पोस्टपोन किया। अभी 2 दिन पहले उनका एंगेजमेंट सेशन था, तो मेरा क्लाइंट मुझे बोलने लगा कि सर क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 25-30 लोग ही इकट्ठे होने वाले हैं, तो क्या मेरा पैकेज सेम रहेगा। मैं बोला नहीं, तुम्हारा पैकेज सेम नहीं रहेगा। बोला वो अच्छा, फिर उसको लगा शायद मैं मैंने कहा यार तुम्हें उस पैकेज को मैं कुछ मॉडिफाई करूंगा। बोला कैसे। मैं कहा देखो, पहले क्या होना था कि बड़ा लंबा चलना था प्रोग्राम, तो आधा घंटा मिलना था पोर्ट्रेट शूट के लिए। अभी तुम्हारे ड्राइंग रूम में तुम्हारा एंगेजमेंट हो रहा है, तो ड्राइंग रूम में तो तुम्हारे पोर्ट्रेट में नहीं करूंगा, तो तुम जर्नल अपना वो कर लो। उसके बाद आई विल टेक यू गाइज आउट, किसी अच्छी नियर अबाउट प्लेस पे चलेंगे, एंड आई विल टेक सम गुड पिक्चर्स ऑफ यू। मैं उनको 1-1.5 घंटे के लिए कहीं साइड पे, मतलब किसी लोकेशन पे लेके गया, और वहां पे मैंने उनका एक सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो कि प्री वेड कह लो या कुछ भी, लोकेशन शूट 1-1.5 घंटे का कर दिया मैंने। अब क्या हुआ, अब जब उन्होंने वो पिक्चर्स देखे, दे वर वेरी हैप्पी कि यार अरे वाह यार, हमारा तो ऐसे, क्योंकि ये ऐसा उस तरह के पिक्चर्स कभी भी आपको एंगेजमेंट में देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। सो आप अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करो, फाइंड ए वे कि आप उनको मॉडरेट कर सको, उनको कुछ ब्राइट दिखाओ, कुछ ब्राइट साइड दिखाओ चीज की, रादर आप पैकेज पे कंप्रोमाइज करोगे। इट इज योर ब्रेड एंड बटर, आप मार्केट को खराब नहीं कर सकते इस टाइम। दीपक, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जिसमें एक कॉमन क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जिसके बारे में मैं कपिल जी से जानना चाहूँगा। अदर्स फोटोग्राफर वो कैसे मार्केट में स्टैंड बाय करें, नंबर 1। नंबर 2, जो बड़े ब्रांड वैल्यू के ऊपर बजट्स आ रहे हैं, उन्होंने अपने बजट्स को लेके कहीं पे कम कर दिए हैं। जो क्वेरीज आ रही हैं अभी अटेंडी की, तो हम लोग कैसे सरवाइव करें मार्केट में, हमारा ऑलरेडी बजट कम है, तो हमें कैसे उसको हैंडल करना चाहिए। कपिल, एक बात ये बताओ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स लाइक बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमेशा टॉप लेवल के फोटोग्राफर ही मार्केट में रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि that every client will be able to pay that, you know, the high chunk of money. शादी तो सबने करनी है, be it at a ground level, और चाहे वो राजा महारानी जो भी है, ठीक है। So I think fellow photographers से मेरी ये request रहेगी that, you know, if you'll sit at home, nothing will happen. To be very frank, you will not rise up in the competition. At this time, this is a perfect time when you work on yourself. और जो आपको you have to stand out in a moment, like what different or what good better you can give from the any competition you have in the market. ऐसा नहीं है that you have to tell wrong about a photographer, नहीं मैं वो ये नहीं करता, मैं ये करता हूँ, या उसके पास ये चीज नहीं है, I have this thing, और मेरा कैमरा better है, I have a more expensive camera. These are not the means. End of the day, जो भी क्लाइंट आपके साथ काम करना चाहता है, या फिर whosoever is very much happy with your work, वो आपके साथ स्टिक करना चाहेगा, बट आपको अपना जो एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन लेवल है उनका, उसको हमेशा टच करते रहना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई न्यू फोटोग्राफर है, ही वांट्स टू, यू नो, बी अ वेरी प्रो फोटोग्राफर, एंड ही वांट टू बिकम लाइक एनी फेमस फोटोग्राफर आउट देयर, तो उनको सबसे पहले क्या करना होगा, दे हैव टू एडवर्टाइज देयर वर्क,
which is very much important. आज के टाइम में क्या हो गया है कि पर्सनल मीट कुछ कम हो चुका है, just due to this COVID. Earlier also, now the person has to be very much tech friendly. उसको अपने आप को इतना groom up करना पड़ेगा that he can showcase his work. For example, Deepak told कि there are platforms जहाँ पे आप sell कर सकते हो. जरूरी नहीं है weddings is on the only the platform. Fashion photography है, newborn baby photography है, architecture photography है, अपना wildlife photography है. एक मैं वीडियो देख रहा था परसों ही, which gave me an input. जैसे हम we photographer are there, we have different set of equipments. अब हम weddings नहीं हो रही है, we are just sitting idle. I'm sure जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस जगह पे भी आप रहते हैं, you have some nice place. आजकल क्या है, stock footage जो रहता है. For example, अगर editors है तो they can edit something as for example, अगर मैं शिमला में रहता हूँ, if I with permissions and everything, अगर कोई अच्छी location है, if I get a for example camera shoot 4K 6K these days, stock footage shoot कर लो आप, advertise yourself, और वो footage हो सकता है down the line, you get money for that, because at this moment अगर मान लो films है, people would want शिमला का एक उनको shoot चाहिए, and they cannot come from there, so definitely they'll look into the Google और जो भी वेबसाइट्स अवेलेबल है आउट देयर. सो अपने आप को जब आपने राइज करना है, यू विल हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन योरसेल्फ. अपने आप को स्किल को अपने स्किल सेट को बढ़ाना पड़ेगा. अब अगर कोई भी कॉमन फोटोग्राफर है, सो इट्स नॉट जस्ट क्लिकिंग इट, यू शुड नो हाउ टू वर्क ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल हाउ टू प्ले विद लाइट्स. ये सब चीजें, दिस एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द लाइन. गूगल में, यूट्यूब पे आप कुछ भी डालो, हाउ टू shoot in priority mode, how to shoot with the high shutter speed, what difference you can get out there. आप अगर off camera flash use करते हैं, उससे क्या difference आता है, और high shutter speed पे आप कैसे खेल सकते हो, how to cut lights and everything. बहुत ज़्यादा, because तभी मैंने कहा कि this is a field जहाँ पे आप मतलब top notch expertise कभी नहीं, there's always a learning. For example, अगर we people might work together, collaboration का हमें अगर मौका मिलेगा तो I learn from Gurpreet Paji, Deepak Paji and हमारे जो senior है भूमेश जी यहाँ पे, तो definitely इनके पास कुछ होगा, I might have something. So हम अपने juniors से भी learn कर सकते हैं. तो अगर कोई fellow photographer वहाँ पे है who is just in the market, new there, तो I think वो optimistic रहना चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए अपने caliber पे. So ऐसा नहीं है कि आप कल के लिए pro में हो जाओगे. It will take time, because अगर मैं if I look at myself, I started photography when I was in school. पर ये नहीं था कि मैं professional level पे कर रहा था. There were I must take one name, there's this Goldie Giladia from Chandigarh, and one more Kaushik. He helped me back in Bangalore. So एक कोई ना कोई रहता है who try to boost you up, और हमें ये ध्यान जरूरी रखना चाहिए कि हमें किसी को भी demoralize नहीं करना है यहाँ पे, that you don't know photography. जितना भी हम अपने आप को ज़्यादा ही मानेंगे तो that will not help it out. We'll have to make sure that we try to feed everyone with the knowledge, whosoever wants to grow up, because then only this industry will have more work and more people to work with. So this is what I would have to say at this case. And there was one more question which was coming, is like जो बड़े level के photographer है, they are ruining the market by shedding their prices. For example, if there is one person, he shoots wedding of 5 or 6 lakhs, and he just to grab a wedding, he would do it in 1 lakh or 2. So I think at this point, which I forgot earlier, हमें क्या करना होगा, एक जो base है, we can set a base, but we cannot जो top को हम set नहीं कर सकते, because for example Deepak Paji will have his own set of जो अपना package रहता है, so he can go up to any level, but base हम set कर सकते हैं individually, but इसके लिए हमें we will have to come up with the organizations. For example, अगर पंजाब level का अलग organization है, हिमाचल level का organization है, पहले हमें अपने state या district level से शुरू करना होगा, then only we'll come to India based. Because अगर हम base level, for example, if a person is charging 5,000 for doing a photography in one day, ठीक है, another photographer might just slash it down to 2,000 just to get it. But otherwise, अगर if client को यही सुनने को मिलेगा कि this 5,000 he or she would charge in one day, so then he or she would stick to you. Otherwise उनको अगर लगेगा कि that any other photographer is, उससे क्या होगा कि किसी का job छिन जाएगा फिर. So I think to be on the same page, we have to make sure जो हमारा base है, we keep it
थ्रू आउट इंडिया एट वन प्लेस, सो देन अर्न भी उस हिसाब से करेगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू keep the status of a photographer or to keep the quality also going, because otherwise if अगर हम compromise करते रहे, we might also compromise on the quality, then we are not going anywhere. दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अभी हमारे पास एक ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है, बड़े बजट में बड़े ब्रांड कैसे उसको रिड्यूस कर रहे हैं, और हम जो छोटे बजट में ले पा रहे हैं, छोटे बजट में जो हम वेडिंग बुक करते हैं, हमारे लिए मार्केट में सर्वाइवल थोड़ा टफ हो रहा है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना क्या चाहोगे? आप एक बार रिपीट करेंगे मुझे आवाज आपकी, क्या बोला आपने? या नाउ ऑडिबल? हाँ जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ, जो अभी एक कॉमन क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जो मैंने अभी कपिल जी से भी डिस्कस किया, भी बड़े ब्रांड के बजट कम कर रहे हैं बड़े ब्रांड के फोटोग्राफर, तो हमें छोटे जो हम ब्रांड में काम कर रहे हैं, ऐसा बड़ा छोटा ब्रांड कुछ नहीं होता, पर हमें मार्केट में कैसे सर्वाइवल करना चाहिए, तो आप इसके बारे में कुछ देखो, मैं सजेशन ना दीजिए। जब अभी कपिल जी बोल रहे थे ना, मैं आई रियली अप्रिशिएटेड व्हाट ही सेड, और मैं उस पे एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि बड़ा और छोटा का मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, आई एम अनेबल टू डिसाइड एज ऑफ नाउ, क्योंकि देखो क्या है, अभी आप बड़े या छोटे, द बिजनेस यू जनरेट से नहीं होते हो, आप बड़े या छोटे मेरे हिसाब से द स्किल सेट यू हैव उससे होते हो, है ना। अभी अगर आप अपने आप को अभी एक छोटा फोटोग्राफर समझते हो, अगर आपके मन में ऐसी धारणा है कि मैं एक छोटा फोटोग्राफर हूँ और एक सो एंड सो पर्सन है वो एक बड़ा फोटोग्राफर है, तो सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछिए कि वो बड़ा क्यों है और मैं छोटा क्यों, वो बड़ा क्यों है और मैं छोटा क्यों। उसका रीजन सबसे बड़ा ये होगा, शायद वो मेरे से बेटर काम कर रहा है। जैसे कपिल जी ने कहा कि एक बंदा 5,000 रुपया लेता है एक दिन में काम करने का, एंड देयर वुड बी ए पर्सन जो शायद एक दिन का 50,000 लेता है। अब वो क्लाइंट आपको 5,000 भी देके राजी नहीं और उसको 50,000 देके क्यों राजी है? उसका रीजन ये है कि शायद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस बंदे ने अपने स्किल सेट को डेवलप किया है ना, और वो वहां तक पहुंचा है। अभी आप रादर देन अपना स्किल डेवलप करने से ये माथा पीटते रहोगे कि मैं उस तक कैसे पहुंचूंगा या वो मुझे खा जाएगा, या आपकी मार्केट डिफरेंट है, उसकी मार्केट डिफरेंट है ना। मैं अगर देखें, अगर कपिल जी शिमला में काम कर रहे हैं, हमारे गुरप्रीत जी जलंधर में काम कर रहे हैं, हम सब अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, है ना, तो क्या गुरप्रीत जी जलंधर का सारा काम वही करते हैं? नहीं, उनके पास वो बंदा आता है जिनको उनके लेवल का काम या उनके जैसा काम अच्छा लगता है ना। तो हर जगह पे हर तरह की मार्केट होती है। कोई जिस बंदे को मेरा काम अच्छा लगता है वो मेरे पास आता है, जिस बंदे को किसी और का अच्छा लगता है। तो जैसे कपिल जी ने कहा कि हर बजट सेक्शन में फोटोग्राफर्स भी होते हैं और क्लाइंट भी होता है। अगर एक हाई एंड फोटोग्राफर है, उसके पास कभी भी लो बजट वाला जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको पता आई कांट अफोर्ड हिम, है ना। सो अगर आप, और दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपने बजट सेगमेंट के क्लाइंट को बड़े क्लाइंट को टारगेट करना चाहते हो, तो आपको अपने आप को भी पहले उस लेवल तक लेके जाना है। और ये कोविड का जो लॉकडाउन था, दिस इज द आई सपोज द बेस्ट एवर चांस टू एनहांस योर स्किल्स। अगर आप, अभी आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मुझे हमेशा ना मैक्रो फोटोग्राफी का बड़ा शौक रहा है, बट समवेयर डाउन द लाइन, क्योंकि हम वेडिंग शूट करते हैं तो पूरी वेडिंग में शायद 2 रिंग्स के शॉट लेते हैं जो मैक्रो कंसीडर हो सकते हैं, अदरवाइज हम इतना मैक्रो करते नहीं है। तो मैं अभी घर पे बैठ के, जब से मेरे पास टाइम था, तो मैं घर पे बैठ के मैक्रो शॉट्स ले रहा हूँ। कभी अपने किचन गार्डन से मैं कोई फूल उतार के ले आता हूँ, कभी मैं अपना एक मेरे पास छोटा सा कोई मिनिएचर टॉय है वो पकड़ लेता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैं वो कर रहा हूँ। आप यकीन मानेंगे, सिर्फ ये खेल, एक तरह का खेल ही था ये खेल करने से ही मेरे को इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि नहीं यार, मैं ये भी कर सकता हूँ। एंड आई एम सबमिटिंग माई वर्क इवन एट माई लेवल, आई एम सबमिटिंग माई वर्क एट सम स्टॉक वेबसाइट्स। जैसे कपिल जी ने कहा, मैं स्टॉक वेबसाइट, मैंने कल शटर स्टॉक पे कम से कम 12 फोटोग्राफ्स रजिस्टर की हैं, है ना। सो कुछ छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ डिजायर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं ना एक बहुत बड़ा बैरियर देखता हूँ, जब भी मैं किसी भी बडिंग फोटोग्राफर से या एमेच्योर फोटोग्राफर से मिलता हूँ, बात करता हूँ, एंड आई लव टू डू दैट, तो मैं एक बैरियर देखता हूँ। वो बैरियर सिर्फ उनके माइंड में होता है और कहीं नहीं है। कोई बैरियर नहीं है, कोई ऐसा बैरियर नहीं जो किसी को रोक सकता है। आपके माइंड में एक बैरियर होता है कि मैं ये नहीं कर सकता,
अनटिल एंड अनलेस आप ट्राई करोगे ना, आप डेफिनेटली नहीं कर सकते उसको, है ना। सो आप ट्राई करो। आप किसी चीज में, जब आप बाइक चलाना नहीं जानते थे तो आपको लगता था मैं बाइक नहीं चला सकता, फिर आपने ट्राई किया, आप 2 बार गिरे, है ना, किसी की सपोर्ट ली। सो इसलिए अपने स्किल को इंप्रूव करो। सबसे बड़ा मैसेज मेरा ये रहेगा, अपने स्किल को इंप्रूव करो। आज से कल का दिन चढ़ेगा ना, यू शुड बी ए बेटर पर्सन। आज आप जो हो, कल आप उससे बेटर होने चाहिए। अगर आप आज भी वही हो, कल भी वही हो, एक दिन लोग, यू विल बी आउटडेटेड, है ना। अभी हमारे से आने, देखो अभी मेरे से यंगर जनरेशन है ना जो, वो मुझसे शार्प है। आप भी यकीन करोगे, यहाँ पे हमारे सीनियर बैठे हैं उमेश जी, वो भी एग्री करेंगे, आगे आने वाली जनरेशन और शार्प है ना। अगर हमें उस शार्प जनरेशन के साथ टैकल करना है या उसे मैनेज करना है, तो हमें खुद भी शार्प होना पड़ेगा। आप अगर ऐसा सोचोगे, अभी मैंने स्टार्ट किया था फिल्म से, है ना। मैंने निकॉन M3 करके कैमरा आता था, मेरा पहला कैमरा जिंदगी का वो था, है ना। तो मेरे लिए 36 शॉट्स की जो वैल्यू थी ना, वो आज का फोटोग्राफर नहीं समझता। वो शटर हैप्पी है, वो ऐसे करता है, ब्रस्ट मोड में डाल देता हूँ जी मैं इसको, है ना। सो मैं फिल्म से डिजिटल पे इवॉल्व, कोडेक ने नहीं इवॉल्व किया। कोडेक ने कहा नहीं जी, डिजिटल इज नॉट वर्थ इट, तो कोडेक का नाम खत्म हो गया ना। सो इट इज एन, मैंने बात स्टार्ट भी यहीं से की थी और मैं यहाँ खत्म भी इसी पे करूंगा कि एवोल्यूशन है। अगर आप इवॉल्व नहीं करोगे, इफ यू डोंट गेट बेटर। और देखें सर, सौरभ जी, उमेश जी भी एग्री करेंगे, आज तो इंटरनेट है। जब मैंने फोटोग्राफी सीखना शुरू की, तब तो मतलब कितनी रोल मुझे वेस्ट करने पड़ते थे। एक महीना में अपनी पॉकेट मनी से रोल खरीदता था, और जब मैं अगला महीने की पॉकेट मनी से उसको धुलवाता था, तो पता चलता था सारे ओवर एक्सपोज निकले। मैनुअल फोकस था मेरे को, क्रॉस आता था, ऐसे एक सर्कल होता था, उसके बीच में क्रॉस होता, उन 2 क्रॉसेस को अलाइन करना होता था, तो वो आउट ऑफ फोकस निकलता था आधे से ज्यादा शॉट। सो आज आपके पास एवेन्यू है, इंटरनेट है, इससे बड़ी पावरफुल चीज क्या है। अभी मैं कल एक यंगस्टर को बता रहा था कि पहला जो रॉकेट था जो चंद्रमा पे पहुंचा, जिसको हम चंद्रयान बोलते थे, वो अपोलो 11 था शायद, है ना। अभी आपकी अपोलो 11 के अंदर जो जो कंप्यूटर यूज हुआ था ना, उससे 1000 टाइम्स पोटेंट कंप्यूटर आपकी जेब में पड़ा रहता है हमेशा, विच इज योर मोबाइल। आप कभी उसको अच्छी चीज के लिए यूज करो ना। आप ऑनलाइन जाओ, स्किल शेयर है, अभी आपको पता, आई एम ए सब्सक्राइबर टू स्किल शेयर, ठीक है। तो क्या मुझे सीखने की जरूरत नहीं है? मुझे भी रोज सीखने की जरूरत है। अभी कल मैं स्किल शेयर पे आई वाज अटेंडिंग ए क्लास ऑन ए सब्जेक्ट जो मेरे को लग रहा था कि यार मुझे सीखना चाहिए। आई वाज अटेंडिंग ए क्लास। तो देयर इज नो बैरियर इफ यू आर विलिंग टू डू। अगर आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो। सो दिस इज माई भाई, मैं हाथ जोड़ के सब अपने बडिंग फोटोग्राफर और दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को लिमिट मत करो, अपने आप को बांधो मत, किसी को भी नहीं बांधने दो। और आप, यू आर ए फ्री स्पिरिट, आप जो करना चाहते हो लाइफ में वो कर सकते हो, अपने आप को बांधो मत। जी, थैंक यू। मैं जी, मैं बात बोलना चाहता हूँ सौरभ जी। जी एक्चुअली वो मतलब प्राइस कम करना बहुत छोटी सी बात है। आप एक अपना पैकेज बनाओ, 2 मिनट में आप प्राइस कम कर दोगे, वो भी जाएगा, आपके पास क्लाइंट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। बट कोविड सेशन चला जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, तो हमें ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लग जाना। मतलब आप अपना जो भी अच्छा काम करते हो एक सेपरेट साइड पे छोड़ दीजिए। आपने सब मतलब नॉर्मल में आ गए, आपने प्राइस कम कर दिए, क्लाइंट भी आ गए, मतलब सही हो जाएगा ना। तो एक एक हल्की हल्की पौड़ी चढ़ के हम ऊपर चढ़े हैं, तो गिरने में हमें एक में आने में 1 मिनट लगेगा। तो वो सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बहुत कम देर के लिए चलने वाली चीज है। ये मतलब नवंबर तक ऐसा ये जितने भी रिजॉर्ट है ना कपूरथला में या जलंधर में, इनकी कभी पीछे इन्होंने मतलब सबने मीटिंग की, तो मतलब डीसीस ने इनको बोला कि आप नवंबर में 100+ हम आपको परमिशन देंगे 200 लोगों की गैदरिंग। और अभी ट्रेंड भी ये आएगा, देखना आपकी 200 में शादियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग जा भी रहे हैं और जो शादी कर रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है। तो प्लीज प्राइस में कमी मत कीजिए, उसको डिजाइन अच्छे से कर लीजिए, कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दीजिए। लिखने में ही होती है कुछ चीजें, मतलब पॉइंट लिखने को उसको अच्छे से लिखिए, तो वो पॉइंट लगने लगता है। जो हम करते भी हैं शादियों में, पर हम उसको पॉइंट नहीं बनाते, ऐसे ही कर देते हैं। तो पॉइंट बनाइए उसको अच्छे से, उसको पॉइंट्स अपने बढ़ाइए। मतलब करते हम हैं, हम बताते भी नहीं है कस्टमर को कुछ ऐसी चीजें जो हम कर देते हैं शादी में। तो उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाओ। प्राइस नीचे गिराना बहुत इजी है, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। मतलब जो भी दीपक जी ने बात बोली कि मतलब
कुछ बहुत साइट्स हैं कि फोटोज अपलोड कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो मैं इधर जो भी देखता हूँ कि हर फोटोग्राफर मतलब एजुकेटेड इतने नहीं है। यूजुअली फ्रीलांसर हो गए, मतलब उनके लिए ये चीज मतलब बहुत बड़ी है। काम वो अच्छा कर रहे हैं, उनको भी पता है, हम उनको लेके जा रहे हैं शादियों पे, हमें पता है कि वो अपना एफर्ट 200% दे रहा है, और उसके लिए ये चीज मुश्किल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे फादर 1988 से काम कर रहे हैं। हम फिर उन्होंने 2000 में 1201 मशीन लगाई फिल्म प्रिंट के लिए, मतलब वो प्रिंटिंग बिजनेस में गए। मतलब तब से मेरा ध्यान है कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगता था जब वो कैमरास लाके बैठती थी, आज लगाते थे शादी से आके, वो बड़ा बड़ा कैमरा, मैं उसको उठा के ऐसे घूमता था, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था। तो मैं 8th क्लास में था जब से मैं शॉप पे जाता था कि फ्री टाइम निकाल के, हमारे पास 1201 मशीन होती थी, वो प्रिंट लगाते थे, ऐसे घूम के प्रिंट आते थे, कट कट होते थे, बड़ा अच्छा लगता था यार कैसे आ रहे हैं, मुझे चलानी है। और वो जो ऑपरेटर था चलाने नहीं देता। हम संडे 12 बजे दुकान बंद करते थे, तो मैं 12 बजे के बाद 1 बजे चाबी उठा के लेके गया, और मैंने 2 संडे गया, और तीसरे संडे मैंने 12 से 1 पे प्रिंट खुद किए। और वो ऑपरेटर भी देख रहा था कि यार तूने तो, मतलब हम तुमसे कुछ पता भी नहीं है तुम्हें, तो तुमने प्रिंट कर लिए। मतलब कोई भी काम, कैमरा किसी को पकड़ा दो, 10 दिन में मैं बोलता हूँ कि वो यूट्यूब की हेल्प से अच्छा फोटोग्राफर बन जाएगा, अगर वो इंटरेस्टेड है उसमें, मतलब वो उसको समझ रहा है, अच्छे से कर रहा है, दिल से कर रहा है। तो मतलब ये चीज है, प्राइस मत कराओ। प्राइस गिराने से आपको अभी तो चल जाएगा, अच्छे से पैसे आने लग जाएंगे, पर बाद में बड़ी दिक्कतें आएंगी ऊपर उठने में, प्राइस को बढ़ाने में। रेफरेंस बिजनेस होता है, बुआ की शादी शूट की, उसके आगे चाचा के बेटे की शादी आ जाएगी, वो बताएगा मेरे से तो यार इतने पैसे लिए थे। काम अच्छा लगा तो आपसे कांटेक्ट करेगा, बट प्राइस नहीं आप बढ़ा पाओगे, रखनी पड़ेगी। तो जी बढ़ाना बहुत इजी है, उठाना है। जी जी और जी मैं एक चीज इसमें ऐड करता हूँ, कुछ चीजें जी अ, जी भूमेश जी, दीपक जी मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक हमारे अटेंडीज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि हमारा जितना भी ये वेबिनार का डिस्कशन हो रहा है, इसका हम वीडियो कैनवरा के पेज पे भी शेयर कर रहे हैं, और जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनको हम उनकी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भी शेयर कर रहे हैं। तो आप इसको डिस्कशन को वहाँ पे भी सुन सकते हैं जो अभी अटेंड नहीं कर पाए। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भी वो लिंक और वीडियो का लिंक शेयर किया जाएगा, तो आप उसमें हमारे सभी एक्सपर्ट पैनलिस्ट से जो भी डिस्कशन हुई है वो आप वहाँ पे सुन सकते हैं। जी भूमेश जी बताएं। जी, मैं दीपक जी की उस पर ऐड करना चाह रहा हूँ कि प्राइस को लेकर के जो बात हुई है, आज तक 25 साल की फोटोग्राफी की लाइफ में ना, आज तक मुझे कोई एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि मेरा बजट बहुत है सर, आप कम मांग रहे हो और आज ज्यादा ले लेना। कभी नहीं मिला। दूसरी बात कि मुझे अपना रेट ना खुद ही तय करना पड़ेगा। मेरे पिताजी भी नहीं बोलेंगे कि बेटा रेट बढ़ा दो, मुझे अपना रेट खुद तय करना पड़ेगा। और जो जैसे गुरप्रीत जी ने बोला ना, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के हम जाएंगे और एकदम से गिर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये सही बोल रहे हैं बिल्कुल कि अपना रेट ना खुद को तय करना है। आज मैंने स्टार्ट किया, मैं नए फ्रीलांस फोटोग्राफर से भी बात यही बोलना चाहूंगा कि आज उन्होंने स्टार्ट किया, कभी कभी वो 3, 4, 5 हजार रुपए पर डे से स्टार्ट करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। मेरे अपने लोगों को मैंने खुद बोला था कि भाई अब तुम्हारी डिमांड ज्यादा होने लगी है, मैं भी तुम्हारी डिमांड कर रहा हूँ। हालांकि गलत है, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप अपना रेट ना कुछ बढ़ा लेना। 2, 3, 4 साल हो चुके हैं आपको, तो जी ये खुद खुद लोगों को ना ये अपने आप ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने। जी तो जैसे अभी। हेलो। जी जी भूमि जी। हाँ जी सर, दूसरा ये है कि जो फ्रीलांसर्स है ना, उनके लिए तो अभी बहुत पहले से बात चल रही थी कि पता नहीं आने वाले टाइम कैसा होगा कोविड-19 के बाद। तो उनके लिए एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये हम फोटोग्राफर्स का काम जो है वो खुशियों को समेटना है। शायद 99% हम सब लोग ना खुशियों की फोटोग्राफी करते हैं। खुशी के इवेंट जो होते हैं जो भी है, तो दुख भरे इवेंट को कोई नहीं शायद शूट करता। बहुत कम लोग होते होंगे जो कभी कभार कुछ ऐसा कोई करा लेते हैं। 99% हम खुशियों को समेटते हैं अपनी फोटोग्राफी। तो खुशियां ना जिंदगी में, दुनिया में कभी कम नहीं होती, होती रहेंगी। तो चिंता, इस बात पे कभी कोई चिंता नहीं करनी कि हमारे पास काम नहीं आएगा। काम बहुत आएंगे और नए नए तरीके से काम पैदा भी होंगे अभी।
बहुत सारे तरीके थे। अभी तक सिर्फ शादियां हो रही थी, अब धीरे धीरे नए नए तरीकों के काम भी आने शुरू हो गए हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी आज की डेट में, एक वेडिंग फोटोग्राफर का जब सीजन ऑफ होता है ना, तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी, अब सब कुछ जब ऑनलाइन हो गया ना, तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी की तरफ बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ा सा ध्यान बटा लेना चाहिए अपना, उनके ऊपर काम करते रहना। जैसे अभी सर ने बोला था ना, दीपक जी ने, कि उन्होंने अपना मैक्रो लेंस का यूटिलाइज कुछ और तरीके से किया, तो ऐसे ही जो कुछ उसके पास है, जितने भी स्किल है, लिमिटेड, अपनी कोई नया कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आज जो इकोनॉमी हमारे पास हुई है कि अब हम आगे कैसे करेंगे, तो उसमें बहुत कुछ जरूरी नहीं है कि अब नया खरीदो, जो पुराना था ना। जी जी, जी जी जी। तो तो जो कुछ है ना, उसे सफिशिएंट है, उसी के अंदर इर्द गिर्द अपने आप को बढ़ा लेना चाहिए, बहुत कुछ बढ़ा लेना चाहिए, नया नया कुछ, बहुत कुछ सीखने को है सर, बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। जी जी जी। सर। जैसे अभी हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट और हमारे अटेंडी, हमारा जितना भी डिस्कशन हुआ फोटोग्राफी इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें आउटकम निकल के आ रहा है, हमें पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें पेशेंस रखनी चाहिए, सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए और अपनी टीम की हेल्प करनी चाहिए। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पैनलिस्ट से वन बाय वन अपनी फाइनल स्टेटमेंट इनपुट्स दें, जिससे हम हमारे पास वेबिनार का क्लोजिंग टाइम भी आ रहा है, तो उसी वजह से मैं चाहूंगा अभी सबसे पहले दीपक जी, तो व्हाट इज योर फाइनल स्टेटमेंट एंड योर सजेशन प्लीज। सर देखें, मैं फिर यही चीज को, इस फैक्ट को री एम्फसाइज करूंगा कि आपके पास जो हो, जैसे उमेश जी ने बिल्कुल जबरदस्त बात कही है, मैं इनसे 101% एग्री करता हूँ कि आपको कुछ नया लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जैसे आपको बोल रहा था कि मैं मैक्रो वो कर रहा हूँ, जब मेरे पास मैक्रो लेंस नहीं था ना, तो मैंने 600 रुपए का एक्सटेंशन रिंग लेके अपने लेंस के पीछे लगा के भी मैक्रो किया है, मैनुअली फोकस करके, है ना। सो डिजायर सबसे बड़ी चीज है। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, इफ यू आर ए फाइटर, यू हैव टू फाइट, दिस इज टाइम टू फाइट। आपको हमेशा नहीं फाइट करना है, इस टाइम पे फाइट करना है। सो आपको करना चाहिए, पैनिक नहीं करना है, अपने अपने आगे पीछे के सराउंडिंग्स के साथ अडॉप्ट करना है ना। सो आपको, अगर आप अपने काम को इवॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको एक बात फिर बोलता हूँ, कोविड और नो कोविड, आने वाला टाइम जो है उसमें ये सब बदलाव वैसे भी आने वाले हैं। ठीक है, आपको अपना काम ऑनलाइन प्रमोट करना है, वो आगे वैसे भी होने वाला है। अभी देखें, आपके रिस्पेक्टिव शहर में ज्यादातर आने वाली जनरेशन आपके शहर में काम नहीं करेगी। अब मैं जम्मू में रहता हूँ, जितने भी यंगस्टर हैं, कोई बेंगलोर में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई बॉम्बे में काम कर रहा है, कोई लंदन में काम कर रहा है, कोई सिंगापुर में काम कर रहा है। जब उनकी वेडिंग होगी, वो वापस जम्मू आएंगे और मुझे कांटेक्ट करेंगे। अब वो जब बॉम्बे से मुझे कांटेक्ट करेगा, तो पर्सनली मिलने तो नहीं आएगा, मेरे ऑनलाइन पोर्टफोलियो पे जाएगा। सो एनी हाउ, कोविड और नो कोविड, आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को एनहांस करना चाहिए। बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, प्लेटफॉर्म्स, फ्री प्लेटफॉर्म्स की कोई कमी नहीं है। ठीक है, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी देखो, हर कंपनी इज शोइंग कंपैशन। आपको अगर मैं बताऊं, मैं एडोब सब्सक्राइबर हूं, मेरे पास एडोब की सब्सक्रिप्शन है, ठीक है जी। एडोब मैंने मांगा नहीं, पर एडोब ने मुझे, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, मेरा अदरवाइज 5400 समथिंग मंथली रेंट है सिर्फ एडोब सब्सक्रिप्शन का, एडोब ने मुझे मार्च से लेके अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन फ्री कर दिया, माफ कर दिया। ऑल्दो मैंने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि आप मेरा सब्सक्रिप्शन ऑफ कर दो, बट उन्होंने कहा आप लॉन्ग टर्म यूजर हो, बिकॉज फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स आई एम यूजिंग हैविंग देयर सब्सक्रिप्शन। सो एवरीबडी इज शोइंग कंपैशन, है ना। आप कुछ कर रहे हो, अभी मैं अपने चैनल पे आई एम रनिंग ए फ्री गिव अवे। जैसे यंगस्टर्स हैं, उनको पोर्ट्रेट चाहिए, मैं आई एम गिविंग देम 5 पोर्ट्रेट्स फॉर फ्री। आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना चाहते हो, आप उस पोर्ट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोफेशनली उसको यूज कर सकते हो। सो हमें एक दूसरे की तरफ कंपैशन रखना चाहिए, है ना, सहानुभूति रखनी चाहिए, एक दूसरे को हेल्प जितना कर सके करना चाहिए। ये compete करने का टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम टू compete। पूरी उम्र पड़ी है, करेंगे, जम के करेंगे, फेयरली करेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि बिलो द बेली किसी को हिट करके compete करना है, आप एक फेयर कंपटीशन कर सकते हो, उसके लिए पूरी पूरी जिंदगी पड़ी है। बट दिस इज नॉट द टाइम टू compete, दिस इज द टाइम जब हम एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। और जैसे सब पैनलिस्ट ने भी एग्री किया कि हमें मतलब गंदे तरीके की मार्केटिंग नहीं करनी, नेगेटिव मार्केटिंग हमें नहीं करनी है कि दूसरा बुरा है इसलिए मैं अच्छा हूं, नहीं नहीं।
मेरे ये यूएसपीज हैं, मेरे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ये है, मैं ये अच्छा करता हूँ। आप अपने बारे में बात कीजिए, अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिए, रादर कि आप बोलेंगे कि जी XYZ आदमी खराब है या उसका कैमरा सही नहीं है, वैसा मत कीजिए। जस्ट टॉक अबाउट योरसेल्फ। और उसके साथ साथ मेरी फिर मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अगर आपने डिसीजन लिया लाइफ में आई वांटेड टू बिकम ए फोटोग्राफर, आपने हाथ में कैमरा पकड़ा है, आप उसे पूरे तरीके से सीखिए, अपने स्किल्स को इनहेंस कीजिए। अदरवाइज आपने वो डिसीजन फिर मेरे को लगता है गलती से ले लिया, क्योंकि मैं कैमरा से प्यार करता हूं, मैं रोज कुछ नया सीखना चाहता हूं। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे रोज कुछ नया सीखना चाहिए। बहुत सारे एवेन्यूज हैं, इवॉल्व कीजिए। और डेफिनेटली जब आप इवॉल्व, देखें एक पॉजिटिव स्टेप होता है ना जो लाइफ में, वो एक नेक्स्ट पॉजिटिव स्टेप को शेप देता है। जब आप कुछ नया सीखेंगे ना, जब आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी सीखेंगे ना, हो सकता है कल को कोई होटल, यू हैव टू रीच आउट टू पीपल। पहले आप शायद नहीं करते थे, आप मैसेज डालिए, टेक्स्ट कीजिए, होटल वालों को कीजिए, बैंक्वेट हॉल, जिनको ऑनलाइन, हर किसी को मार्केटिंग की जरूरत है, ऑनलाइन पोर्टफोलियो की जरूरत है। आप रीच आउट कीजिए, लोगों को कांटेक्ट कीजिए, लोगों को ऑफर कीजिए सर्विसेज। सो आपको लोग, आप अपने घर में बैठे हैं मायूस होके, तो लोगों को थोड़ी पता है आप मायूस हैं और आपको हेल्प करना है, आपको रीच आउट करना पड़ेगा, कॉल आउट करना पड़ेगा। सो लोगों से कांटेक्ट में आइए, लोगों को रीच आउट कीजिए, आपको डेफिनेटली काम भी मिलेगा, आपका स्किल इनहेंस होगा। तो आपका जो पे कैपेसिटी है, जो लोग आज, अगर मैं एक एक्स पर्सन को 10 रुपए पे करता हूं, अगर उसका स्किल डबल हो जाएगा तो व्हाई नॉट, आई विल पे हिम 20 bucks, आई विल डेफिनेटली बी लविंग टू पे हिम 20 bucks, अगर वो मुझे अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ टाइम निकाल के करना है, तो उसमें तो आज भी कोविड हो या कोविड और नो कोविड, यू आर नॉट गोइंग टू इवॉल्व। सो मेरा लास्ट रिक्वेस्ट फिर मैं हाथ जोड़ के यही अपने भाइयों से करूंगा कि लर्न, देयर इज एम्पल नॉलेज अवेलेबल, इट इज ऑल फ्लोटिंग इन द एयर। अभी क्लाउड का जमाना है ना, सब नॉलेज यहाँ घूम रही है ऑन द एयर, सब घूम रही है, सिर्फ आपको हाथ बढ़ाना और पकड़ना है उसको। सो डोंट बी हेजिडेंट, अपने दिमाग में कोई भी बैरियर ना रखिए, सीखिए जितना सीख सकते हैं, और डेफिनेटली कुछ सीखी हुई चीज आपको काम ही देगी। थैंक यू। और मैं डेफिनेटली आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक एवरीबडी, सौरभ जी, कपिल जी, उमेश जी, और अपने पाजी को भी मैं थैंक्स कहूंगा। वेरी वेरी हेल्पफुल। मैं इनफैक्ट मुझे और किसी का पता नहीं कि पब्लिक ने क्या सीखा, बट मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, और आई रियली थैंक यू ऑल। बहुत मजा आया इस डिस्कशन का, इट वाज रियली रियली वेरी हेल्दी डिस्कशन। थैंक यू। Kapil, your closing statement, please. Yeah, sort of. Though I'm loving the conversation, we can keep on and on. But however, we need to close it down. So, मेरा यही कहना रहेगा fellow photographers और jury से, the panels and everything. जो भी photographers है वहाँ पे out there, don't feel left out. ये मत सोचो कि that we are not getting work, or this is very tough time, or whether we should go for any different job or probably something. This is a time where you need to hold on to it, because better time will come down the line. So don't panic, don't put things on tomorrow. जो आपने आज decide किया होगा to go through the, जो भी हम information दे चुके हैं आपको, you can reach out to us, any person out there who you find a better person. अगर एक आपकी help करने को ready नहीं है, तो I'm sure there are n number of people who would definitely listen to you. ऐसा नहीं है कि हो सकता है किसी के पास टाइम नहीं है, तो there are people who would love to collaborate with you और आपके साथ काम करना चाहेंगे. So don't feel sad, don't feel sad. आपकी कोई issue है, so try to sort it out with a friend photographer और किसी के साथ भी. So ये नहीं सोचना है कि मेरे को काम नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं और जाना है. Because to be very frank, I hope everyone agrees, photography is a kind of work जिससे हमें, for example, I would have not met you or people. आज मुझे आप लोगों को जानने का मौका मिला. We have traveled many places. नए लोगों से मिले, new friends बनाए. So this is the best part I love about this work. So I think you need to work together and don't put things on tomorrow. जो आज आपने करना decide किया, आज ही कर लो. Because down the line you might have lots of work. So जिससे आपको time ना मिले. और for clients के लिए आप interaction में make sure that you show how safe you are to work with. ये आपको advertise करना होगा अपने clients के साथ, तभी they will work with you. Because this is the priority at this hour, that how safe you are to work with. And I'm very much delighted to be the part of this. I'm very thankful. I think Canberra ने जो platform हम लोगों को दिया है, personally I have worked with Canberra I think almost more than 5 years now. So I'm very much delighted. They helped me to build my profile. I got a lot of work from them. So I think ये अच्छा platform है. As Deepak sir ने कहा कि
नो यू कैन बिल्ड अप अ प्रोफाइल ऑन कैनवा एंड शोकेस योर वर्क. बहुत सारे और भी ऐसे वेबसाइट्स है जिस पे आप शोकेस कर सकते हो. So I guys, you know, let's do it. Let's not like, you know, leave at the moment. This is the time जब हमें strong रहना होगा, एक दूसरे के साथ रहना होगा. So I would wish very safe to everyone. You know, stay safe at this moment. Thank you very much. Thank you. Gurpreet ji, closing statement please. हाँ जी, तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि मतलब स्ट्रॉन्ग बनो, पॉजिटिव रहो. तो थोड़े टाइम की बात है, तो आपको सबको अच्छे मतलब काम करना है. तो किसी को भी मतलब प्राइस मत कम करो, मैं तो यही बोल रहा हूँ. क्योंकि लास्ट 2-3 दिन पहले एक मेरा फ्रेंड है, तो वो फ्रीलांसर है. मतलब वो बोल रहा था कि यार प्राइस कम कर देता हूँ थोड़ा. तो मैंने भी उसको भी यही बोला कि यार मतलब प्राइस मत कम कर. मतलब तेरा तो वैसे छुट्टियों के दिन स्टार्ट थे, तो क्यों मतलब प्राइस कम कर रहा है? तो छुट्टियां मान. फ्रीलांसर फोटोग्राफर का पंजाब में बहुत गर्मी होने के कारण इतनी शादियां नहीं होती. तो फिर भी मतलब क्यों वो सब लोग ऐसा सोच रहे हैं मुझे नहीं पता. तो इसको पॉजिटिव लेके चलना चाहिए. अगर हम नवंबर में ये सब चीजें हो जाती तो मतलब क्या कर लेते हैं हम. तो हर चीज को पॉजिटिव लो, तो अच्छे से मैनेज करो. और मेरे लिए आज मैंने बहुत कुछ सीखा. ये मेरे लिए मतलब फर्स्ट टाइम मैं ये ऐसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहा हूँ. तो मैंने मतलब सीनियर से, सब मेरे से सीनियर है इधर, अवनीश सर, दीपक सर, कपिल जी, बहुत कुछ सीखा इनसे. होपफुली आगे हम टच में रहे इनसे. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू कन्वेरा. Yeah, thank you. And finally, respected Bhumesh ji, your closing statement please. लास्ट में बोलना बड़ा मुश्किल होता है सर. अच्छा ठीक है सर, मैं क्लोजिंग पे एक ही चीज बोलूंगा कि भाई हम अपने आप को ना, आप ऐसे मानिए कि एडवोकेट्स को देखें, आप एडवोकेट्स और डॉक्टर्स को सब शाम को बैठ करके ना मिलजुल कर बातें करते हैं. अगर एक एडवोकेट के पास एक ही क्लाइंट के दो जो एडवोकेट है ना आपस में मिलते जुलते कोर्ट में सब भिड़ते हैं ना, तो बाहर आकर के सब एक हो जाते हैं. ऐसे ही ना हम सब फोटोग्राफर्स को होना है. हमारा जो प्राइसिंग फैक्टर है या कोई और जो कंपटीशन फैक्टर भी है ना, वो भी कम हो जाएगा अगर हम सारे फोटोग्राफर एक साथ मिलके चले. हमने हमने देहरादून में, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देहरादून फोटोग्राफर एसोसिएशन कुछ टाइम पहले फॉर्म की. उस समय ये जो एसोसिएशन फॉर्म की थी, तब कुछ फोटोग्राफर्स के साथ अनहोनी हो गई थी. एक की डेथ हो गई थी, एक का पैर गया था. तो इनके परिवार को चलाएं कैसे, तो सारे फोटोग्राफर्स ने मिल करके थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और इन परिवारों की हेल्प करी. ये जो संगठन पूरा बना ना, उसके बाद धीरे धीरे हेलो धीरे धीरे ना बहुत हेल्पफुल फैक्टर हुआ. अभी कोविड-19 के टाइम पर भी बहुत सारे जो सपोर्टिंग स्टाफ था ना, उन तक राशन पहुंचाने का काम से लेकर हमारे जितने जो एसोसिएशन के जो कोर ग्रुप है, प्रेसिडेंट और ये सब लोग बहुत सारे काम किए. प्लस डेली जो हमारे बिल्कुल एक सेंटर पोजीशन है जहाँ पर मीडिया और पुलिस के लोग दिन भर ड्यूटी करते थे, उन लोगों को भी इन्होंने खाना बना करके खाना खिलाया. बीच बीच में बहुत सारे वो करे. तो हमने आपस में एक दूसरे को जो हेल्प करी ना, एक दूसरे को सपोर्ट मिलता रहा. तो ये जो संगठन इस तरह से काम करेंगे ना, आने वाले टाइम पर यही कॉस्टिंग को लेकर, कंपटीशन को लेकर के भी ये एकजुट हो जाएंगे. जब एकजुट होंगे, हम चाह रहे हैं कि सारे अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पे वो सारा पूरे एक पूरे प्रदेश लेवल पर, फिर इंडिया लेवल पर हो. तो एक जो आपने अभी डोगरा जी ने बोला था कि मिनिमम लेवल सेट करना है कहीं पर, वो भी हम कभी इस बारे में बातचीत कर करके ये सेट कर सकते हैं. एक चीज तो यही मेरा एक सारा वो था कि हम सबसे पहले संगठित हो, प्लस जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है उसके लिए हम पूरी तरह से, हम जो लोग सीनियर्स हैं वो सब लोग उनके लिए हेल्पफुल साबित हो. आने वाले टाइम पर फ्रीलांसर से और बाकी फोटोग्राफर से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई कोविड और किसी भी तरह के आने वाले ऐसे कोई टफ टाइम पे अपने रेट कम ना करने की कोशिश करें, कि कम ना करें. टाइम ठीक हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, कभी ना कभी वो ठीक होगा. ये कोविड भी अभी ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है. और सबसे ज्यादा जरूरी कि हम अपने आप को सेफ मानकर, सेफ करते हुए
हर सामने वाले व्यक्ति को ऐसा सोचे कि ये शायद इससे मुझे खतरा है, ये मान के चलेंगे तो हम खुद को बचाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जितना हम बाहर निकलना शुरू हो गए तो हमें खुद को बचाना भी है, हमें अपने परिवार को भी बचाना है, हमने सामने वाले को भी बचा कर रखना। और एक चीज मैं कैनवरा का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस तरह का डिस्कशंस को शुरू किया। इकोनॉमी को लेकर के सब लोगों की जितनी सुविधाएं थी वो धीरे धीरे शायद दूर होंगी। कई लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को हमने इस कैनवरा के मंच से दूर किया है। मैं कैनवरा से करीब 2009 में मैंने पहली एल्बम बनाई थी, 2008 से जुड़ा हूँ। 2009 से मैं अब तक लगातार बिजनेस करता रहा हूँ। कैनवरा की एक ही बात अच्छी सी लगी कैनवरा के लिए, मैं बोलूँगा कि कैनवरा ने हमेशा उनकी बाइंडिंग और उनकी बॉन्डिंग दोनों चीज़ बहुत बढ़िया रही है। उनके फोटोग्राफर्स के साथ बॉन्डिंग, कैनवरा के साथ कोई फोटोग्राफर काम कराता हो या ना कराता हो, लेकिन उन्होंने जो फोटोग्राफर्स के लिए प्लेटफॉर्म दिया है वो इंडिया में इससे बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि आज क्लाइंट भी जानता है और वो कहता है कि कैनवरा से जुड़े हैं तो इसका मतलब आप बड़े फोटोग्राफर है। जो हम छोटे और बड़े फोटोग्राफर की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन कई क्लाइंट्स को लगता है कि हम कैनवरा के साथ जुड़े हैं तो इसका मतलब हम अच्छे फोटोग्राफर्स हैं। थैंक यू कैनवरा, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। हम सबको लिए बहुत अच्छा डिस्कशन लगा। आप लोगों ने जो कहा कि हमने सीखा है, मुझे लगा कि मैंने कुछ सीखा। आज ये भी सीख लिया कि सफेद बाल नहीं रखने थे, मैं सीनियर हो गया सफेद बालों से। थैंक यू। जी जी। तो जैसे मैं आज इस वेबिनार में सभी जुड़े हुए पैनलिस्ट का, रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स वेरी मच एंड ऑल द अटेंडी हु हैव जॉइंड द वेबिनार, थैंक्स फॉर यू एज वेल। तो इन फ्यूचर में भी हम इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे आगे काम करते रहेंगे और कैनवरा की तरफ से आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, everyone.